رات گزر رہی تھی اور سب کے لیے ہی گزر رہی تھی. رات سب کے لیے رات ہی تھی، سب کے لیے سیاہ اور تکلیف دہ تھی. تالیہ اب اپنے بیڈ روم میں تھی. بیڈ پہ چت لیٹے وہ چھت کو دیکھ رہی تھی. موبائل بجا تو اس نے فون اٹھا کے دیکھا. اسکرین دھندلی تھی. اس نے آنکھوں کو رگڑا اور میسج کھولا. موبائل بجا تو اس نے فون اٹھا کے دیکھا. اسکرین دھندلی تھی. اس نے آنکھوں کو رگڑا. ایڈم کا پیغام آیا تھا. ہم نے سرمت کو ٹریس کر لیا ہے. وان فاتح نے ہماری بہت مدد کی. ان کا میری طرف سے شکریہ ادا کر دیجیے گا. کل کا دن میں نے بہت تنگ کیا لیکن وہ میری ہر ای میل کا جواب دیتے رہے. ان کے تعاون کے بغیر ہم سرمت کو نہیں پکڑ سکتے. اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی اور وہ کہتی تھی وہ اس کو بچانے نہیں آتا. وہ اس کے پیچھے قدیم ملاقہ میں بھی آیا تھا. وہ اس کے لیے کب تک نہیں آیا تھا. لیکن اب یہ باتیں بے معنی ہو گئی تھی. وہ اسٹڈی میں بیٹھا فائل دیکھ رہا تھا. آنکھوں پہ چشمہ چڑھا تھا اور ماتھے کے بل برقرار تھے. وہ ٹھیک کہہ رہی تھی ڈیڈ. آواز پہ فاتح نے اسے اٹھایا. سفید فراق والی بچی کونے میں کھڑی تھی. اس نے بالوں کو سفید ہیئر بینڈ میں جکڑ رکھا تھا اور وہ اسے دیکھ رہی تھی. وہ غلط کھا رہی تھی. وہ ناپسندیدگی سے بڑبڑایا. آپ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس کو بچا لیں گے, اس کیس سے اس کو نکال لیں گے, بس وہ قدیم ملاقہ سے واپس آپ کے ساتھ آ جائے. لیکن آپ نے اس کے کیس کی ایک اہم بات چھپا لی. چھپانے اور نہ بتانے میں فرق ہوتا ہے. میں جولیانا کو مشکل میں نہیں ڈال سکتا اور تالیہ اپنے آپ کو اس مشکل سے نکال سکتی. مجھے معلوم ہوتا ہے وہ اس سے نکل آئے گی. اگر اس نے خود کو خود ہی نکالنا تھا تو آپ نے اسے بچانے کا دعویٰ کیوں کیا تھا؟ فاتح نے نک اتاری اور فائل بند کی. اب یہ ساری باتیں بے معنی ہو گئی تھی. آج کی شام سے واپسی ممکن نہیں تھی. رات گزر رہی تھی اور سب کے لیے گزر رہی تھی. رات سب کے لیے رات ہی تھی. وان فاتح کی رہائش گاہ پہ صبح گزشتہ شب کی بارش کی تازگی لیے اتری. لان اور پودے نہا دھو کے پہلے سے زیادہ سرسبز لگ رہے تھے. یا شاید کوئی بھی ٹھیک سے نہیں سویا تھا. اور صبح بے ناشتہ کیے بغیر وہ تینوں گھر کے اندرونی صحن کے برآمدے کے زینوں پہ بیٹھے تھے. چاروں طرف کمرے تھے اور درمیان میں چوکور سا صحن تھا. اوپر چھت کھلی تھی. صبح دوبارہ بارش ہوئی تھی اور صحن کا فرش گیلا گیلا سا تھا. فاتح نے یہ گھر اس صحن کی وجہ سے منتخب کیا تھا کہ یہ اس کو ملاقہ والے سن باؤ کے گھر کی یاد دلاتا تھا. وہ تینوں اوپر نیچے زینوں پہ بیٹھے تھے. جولیانا کا سر اداسی سے جھکا تھا اور سکندر دھیمی آواز میں پوچھ رہا تھا آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا ڈیڈ؟ کیونکہ وہ یہاں نہیں تھی سکندر. بہت ساری باتیں اسی لیے ہو رہی ہیں کیونکہ تالیہ یہاں نہیں تھی. وہ ایک گملے پہ لگا پتا توڑ کھینچ کے اس کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا. جولیانا نے ہاتھ بڑھایا اور پتا توڑ کے اسے تھما دیا. فاتح عادتاً اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے لگا. آپ نے اس سے شادی کیوں کی؟ میں آپ کو جج نہیں کر رہا, صرف پوچھ رہا ہوں. سکندر نے دھیمی آواز میں پوچھا. رات کی بنسبت وہ تینوں قدرے نارمل تھے. اس کا باپ اس کی شادی ایک ایسے شخص سے کر رہا تھا جو دولت مند تھا اور طاقتور بھی, لیکن وہ تالیہ کے لیے سونے کا دوزخ تھا. میں نے صرف اسے اس مشکل سے نکالنے کے لیے کیا تھا. I'm sorry. میں تم لوگوں کو نہیں بتا سکا, لیکن شروع میں ہم نے اسے ایک پیپر میرج کے طور پہ جلد ختم کرنے دے دینا تھا. تو آپ نے اسے ختم کیوں نہیں کیا؟ جولیانا نے سر اٹھا کے امید سے اسے دیکھا. میں نہیں کر سکا. پھر دوسرے مسئلے آن پڑے. میں تالیہ کو بھول گیا. وہ سر جھکا کے دکھ سے کہتے ہوئے اپنے کو توڑ کے نیچے گرا رہا تھا پتے کو. جب یاد آیا تو حالات ایسے ہو گئے کہ اس کو چھوڑنا اس وقت تک ثانوی حیثیت اختیار کر چکا تھا. اور جب یہ فیصلہ کرنے کا وقت آیا کہ ہم نے ساتھ رہنا ہے یا نہیں تب وہ غائب ہو گئی 6 سال کے لیے. اور اب ڈیڈ؟ جولیانا نے امید سے پوچھا. اب آپ ساتھ رہیں گے یا نہیں؟ کیا کل رات کے بعد بھی اس سوال کی گنجائش ہے؟ وہ گہری سانس لے کر بولا. گیلے ذہن میں اداسی سی خاموشی چل گئی. جولیانا کھنکاری. کیا واقعی اس کے والد کے ملازم تھے؟ فاتح نے چونک کے اسے دیکھا. پتا توڑتا ہاتھ رک گیا. کل جاتے وقت علی نے ہمیں کہا کہ اس کے باپا ایک بہت امیر آدمی تھے اور ایک اجنبی ملک میں انہوں نے آپ کو اپنے پاس ملازمت دی تھی. کیا ایسا ہوا تھا ڈیڈ؟ اور فاتح کے لبوں پہ اداس سی مسکراہٹ بکھر گئی.
इसने पत्ता गमले की तरफ उछाला और उठते हुए बोला, वो गलत नहीं कह रही। इसे आगे बढ़ते देख के सिकंदर ने जल्दी से पुकारा, डैड। फातिह पलट के से देखने लगा, वो पेपर्स लाई तो आप इन पे दस्तखत कर देंगे? वान फतेह के चेहरे पे एक वक्त में कई तासुरात आके गुजर गए। अगर वो लाई तो हाँ, इसने कतईयत से कहा। खुद आगे बढ़ गया। सारे सवालात की गुंजाइश खत्म हो गई। सिकंदर ने गहरी सांस ली। वो ज़रे बड़बड़ाया, शुक्र। फातिह अंदर आया और ऑफिस के लिए तैयार होने अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो राहदारी से मीशा निकल के आती दिखाई दी। इसे देख के खनकारी, दांतों से साथ ही लॉन्च की मेज उंगली से बचाई। वो इस तरफ मुतवज्जा हुआ तो मीशा मुस्कुराई। अलबत्ता इसका चेहरा उदास और कुंबलाया हुआ लगता था। मुझे आपकी इजाजत चाहिए थी, मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ इसके घर शिफ्ट हो रही हूँ। फातिह ने ताज्जुब से उसे देखा। और आपका एक्स हस्बैंड? क्या वो जगह इससे महफूज रहेगी? मेरी फ्रेंड का फार्म हाउस शहर से दूर है, मुझे लगता है मैं वहां महफूज रहूंगी। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अरसा मुझे अपने घर रखा। आप ये सब ताले की बातों की वजह से कह रही हैं? फातिह ने अफसोस से देखा। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई पेचीदगी हो। इसकी आंखों में नमी चमकी। मैं पहले ही बहुत से मसाइल का शिकार हूँ, मुझे मजीद एक मसला और नहीं चाहिए। मीशा प्लीज, वो समझाने वाले अंदाज में बोला। तालिया सख्त एक मुश्किल से दौर से गुजर रही है। वो थोड़ी सी पैरानाइड है, इसे हर शख्स अपना दुश्मन लगता है। मैं इसकी तरफ से माजूद ख्वाह हूँ, मगर आप कहीं नहीं जाएंगी, आप यहीं रहें, मैं इस मसले को हल कर लूंगा। मगर मीशा, आपको इजाजत चाहिए थी, मैं नहीं दे रहा। आपके जाने से जूली बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर आपको जाना है तो थोड़े दिन रुक जाएं, फिर आप बेशक चली जाइएगा, लेकिन इस तरह नहीं। फातिह ने मुस्कुरा के हिदायत दी तो मीशा मुस्कुरा दी और सरस बात में हिला दिया। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, अंदर आया और दरवाजा बंद किया। फिर सोचते हुए ये कॉल मिलाई। मैंने रात तुम्हें कहा था कि मुझे मीशा ताज की सिक्योरिटी क्लियरेंस दोबारा करके दो, क्या तुमने की? जी सर, मैंने तमाम सरकारी जराये को इस्तेमाल करके चेक किया है। और फातिह ने बेचैनी से पूछा, सर मुझे इसके बारे में कोई काबिल गिरफ्तार मालूम नहीं हुई। मैंने इसके घर के करीब रहने वाले लोगों से भी मालूम किया, वो वाकई वही है जो वो खुद को कह रही है, एक फोटोग्राफर और टीचर। इसके स्टूडेंट्स के वालिदैन तक इसके अच्छे किरदार की गवाही देने के लिए तैयार है। इसका शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट सब गवर्नमेंट का इशू करता है। क्रिमिनल तो दूर की बात, इसको आज तक पार्किंग टिकट नहीं मिला। सॉरी, लेकिन आपके दोस्त का शक बिल्कुल बेबुनियाद है। फातिह ने अफसोस से आंखें बंद की और सर झटका। ओ तालिया, तुम्हारा पैरानोया। वो समझ सकता था कि तालिया इस धोखे में क्यों है कि मीशा फातिह को नुकसान पहुंचाएगी। ये एक तरह का नफ्सियाती मसला था जिसमें एक शख्स को दूसरे के सेवियर का किरदार अदा करने की इतनी आदत पड़ जाती है कि वो ऐसे हालत में ढूंढने लगता है जिनमें से एक दूसरे को बचाना पड़े। इसे ये वहम होने लगता है कि दूसरे शख्स को इसकी मदद और हिफाजत की जरूरत है। आज सारा शहर गीला गीला सा था। सूरज भी इतने पानी के बायस नाराज सा हो गया था और ठीक से नहीं निकला, मगर बादल थे कि बरस बरस के थकते नहीं थे। अपनी सारी स्याही समेत वो आसमान पर फखर से पहले बूंदे बरसाए जाते थे। ऐसे में एक कॉफी शॉप की शीशे की दीवार पे बूंदे ठहरी हुई दिखाई देती थी। रोस्ट हुए कॉफी बीन्स की महक सारी शॉप में फैली थी। कुछ ऑफिस के लिए तैयार लोग तेजी से कॉफी मग पकड़ते बाहर निकल रहे थे। कुछ लोग मेजों पे बैठे गर्म कॉफी या हॉट चॉकलेट के साथ डोनट खाते हुए मोबाइल पे लगे थे। ऐसे में खिड़की के साथ वो बैठी थी। इसने मेज पे रखे मग के गर्म हैंडल को पकड़ रखा था और शीशे से बाहर गीली सड़क को देख रही थी। आप सुन रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ? सामने बैठे एडम ने मेज पे दस्तक दी तो तालिया चौंकी और उसकी तरफ चेहरा मुड़ा। इसने मांग निकाल के बालों की पोनी बांधी हुई थी। लिबास सिया था, इतना सिया जैसे किसी के जनाजे पे आई हो, लेकिन गर्दन में गिरा लगा मफलर सुर्ख था। एडम देख सकता था कि वो डिस्टर्ब थी। वो इतनी देर से इसको सरमत के बारे में तफसीलात बता रहा था, लेकिन वो नहीं सुन रही थी। क्या हुआ है? नरमी से पूछा। मैंने फातिह को मीशा की हकीकत बतानी चाहिए, वो खोए खोए अंदाज में बोली, लेकिन उन्होंने यकीन नहीं किया। सुबह उन्होंने मुझे एक मैसेज भी भेजा जिसमें लिखा था कि इनकी सिक्योरिटी टीम से मीशा को फिर से चेक किया है, वो बिल्कुल क्लियर है। चेतालिया, मगर जाहिर है ये सब झूठ बोल रहे हैं। मीशा कौन वूमन है और उसको जुल्कफली नहीं भेजा है। चेतालिया, वो खनकारा। क्या मालूम आप गलत हो, तुम भी मुझे अनस्टेबल और पैरानाइड समझते हो। इसने हमें बीच कर उसे देखा। दातन भी यही समझती हैं। नहीं, लेकिन आपके लिए वो 6 साल नहीं गुजरे जो हमारे लिए गुजर चुके हैं। मैं फातिह साहब, दातन, हम सब अपनी जिंदगी में स्टेबल हो गए, लेकिन 6 साल पहले जब हम ताज़ा इस सब से निकले तो हम आपसे ज्यादा अनस्टेबल पैरानाइड थे। इसलिए तो वन फातिह ने सियासत छोड़ दी थी और मैंने याददाश्त खोने का बहाना किया था। हमें नॉर्मल होने में एक लंबा अरसा लगा था, आपको भी लगेगा। इसलिए जरूरी नहीं कि हमेशा कोई कौन आर्टिस्ट हो। तो फिर वो मेरी तरह क्यों लगती है? क्योंकि यूँ समझें कि इनकी कंफर्ट जोन में एक ही तरह के लोग दाखिल हो सकते हैं। इससे ये जाहिर होता है कि इनकी जिंदगी में आपकी जगह है। इसलिए इत्तेफाक से उन्होंने सिर्फ ऐसी औरत को जिंदगी में जगह दी जो किसी तरह तालिया से मिलती जुलती थी। हर शख्स कौन आर्टिस्ट नहीं होता। चेतालिया, आपने कहा
मैं भी ऐसे ही सोचने लग गया, लेकिन अब मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसी होगी। इसके सारे कागजात असली हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी कॉन वूमन है। इसने अपना होमवर्क मुकम्मल कर रखा है। ताली ने हर दरमी से शाने उचकाया। एडम ने गहरी सांस ली। अगर आप ये बात बार बार कहती रही तो वन फातिक को लगेगा कि आप जेलस हो रही हैं। मैं और जेलस? वो तलखी से सर झटक के खिड़की से बाहर देखने लगी। एडम खनखरा। ओके, जब आप मलाका में थी तो मैंने कहा था कि मुझे आपसे एक बात कहनी है। तुम मुझे एक डॉक्यूमेंट बना दोगे एडम? वो थके थके अंदाज में बाहर देखते हुए बोली। तो वो चौंक गया। कैसे डॉक्यूमेंट? मैं फातिह से अलग हो रही हूँ, मुझे तहलील निकाह के कागजात बनवाने हैं। वो चंदा में कुछ बोल नहीं सका। मैं वकील नहीं हूँ। हमारी शादी इस दुनिया में रजिस्टर्ड नहीं थी, इसलिए नोटराइज डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक कागज पे चंद सतूर प्रिंट कर दो, मैं फातिह से दस्तखत करवा लूंगी। चंद सतूर तो आप खुद भी लिख सकती हैं। ताली ने चेहरा इसकी तरफ मोड़ा तो इसकी आंखें गुलाबी हो रही थी। मुझसे नहीं होगा एडम। और ये वो लम्हा था जब बरसों बाद एडम बिन मोहम्मद का दिल एक दफा फिर से खाली हो गया। वो चंद लम्हे बस उसे देखता रहा, दुख से, यासियत से, मलाल से। सॉरी, मैंने तुम्हारी बात काट दी। तुम कुछ कहना चाहते थे? इसने अब उठा के पूछा। एडम ने धीरे से नफी में असर लाया। सारे फैसले एक पल में हो गए थे, अब इसकी जरूरत नहीं थी। तालिया चंद लम्हे उसे देखती रही। इसका हाथ अभी तक मक्के गर्म हैंडल पे था। वो इतना गर्म था कि ना इसके लम से ठंडा हो रहा था, न बाहर बरसती बारिश से। वो क्यों? क्योंकि मैं आपको जानता हूँ चितालिया। आपका दिल टूटा हुआ है, आप नाखुश हैं। मैं नाखुश नहीं हूँ, बस फैसला कर चुकी हूँ फातिह और मैं। इसने नफी में सर लाया। हम नामुमकिन है, हम कभी साथ नहीं रह सकेंगे। इस फैसले को कुछ वक्त है, शायद चीजें ठीक हो जाएं। वो दुखी दिल से कह रहा था। कुछ भी ठीक नहीं होगा एडम, मैं बस उनकी दुनिया से दूर जाना चाहती हूँ। क्या मतलब? वो तेजी सीधा हुआ। डोंट टेल मी कि आप कदीम मलाका जाने का सोच रही हैं। नहीं या अल्लाह, कभी नहीं। ताली ने जोजरी ली। मैं बस इस मुल्क से दूर जाना चाहती हूँ। अदालत मुझे बरी कर दे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, किसी और मुल्क, किसी और शहर में अपना घर बनाऊंगी, नए दोस्त बनाऊंगी, कोई नया काम शुरू करूंगी। वहाँ कोई मेरा माजी नहीं जानता होगा, कोई मुझे नफसियाती मरीज या मजरिम नहीं कहेगा। मेरी सारी जिंदगी नहीं हो जाएगी, मगर दिल तो वही पुराना होगा। वो जख्मी सा मुस्कुराया। दिल पे ताली का इख्तियार नहीं है एडम, लांस पे है। अब यही प्लान ए, बी और सी है। मैं ये कर चुका हूँ, मुल्को फिर चुका हूँ, नए दोस्त बना चुका हूँ, माजी से पीछा भी छुड़ा चुका हूँ। मगर मैं आपको हकीकत बताऊं शहजादी, वो मेज पे आके को झुका और मुस्कुरा के नफी में सुलाया। ये तरीका काम नहीं करता। इंसान जहां भी चला जाए, अगर वो अंदर से खुश नहीं है, अगर इसका दिल मोहब्बत से खाली है, तो बाहर का मंजर बदलने से कुछ नहीं होता। कदमों के नीचे जैसे जमीन भी हो, इसका आसमान वही रहता है। तो मुझे पेपर्स बना दोगे? वो आहिस्ता से बोली। एडम ने इस बात में सर हिलाया। ओके, फिर बात बदल दी। 2 दिन बाद कोर्ट में पेशी। आज रात आपको सरमत से मिलने जाना है। क्या आप इसे हैंडल कर लेंगी? कर लूंगी। ताली ने मुकुट उठाया और होठों से लगाया। इसका हैंडल अब तक ठंडा पड़ चुका था। चितालिया, आपको यकीन है कि सरमद आपकी मर्जी की गवाही देगा? मेरे पास एक ही गवाह बचा है एडम, और मैं इसे अपनी मर्जी का बयान जरूर दिलवाऊंगी। वो कॉफी पीते हुए शीशे की दीवार से बाहर दिख रही थी। इसकी आंखों में सर्द सी आग जल रही थी। इसे अब सिर्फ खुद को बचाना था। सरमद एक दरमियाने काट का आदमी था। उम्र 40 से ऊपर की थी और आंखों पे नजर का चश्मा लगाता था। ये चश्मा उस रात उसकी बेड साइड टेबल पे रखा था और वो खुद लिहाफ फोड़े सो रहा था जब दरवाजा जोर से धड़धड़ाया जाने लगा। सरमद हड़बड़ा के उठा। नाइट बल्ब की रोशनी में इसने वॉल क्लॉक को देखा। सुबह के 3 बज रहे थे। इसने मोबाइल उठाया और स्क्रीन रोशन की। कोई कॉल नहीं की थी, यानी आने वाला इसका कोई शनासना था। दरवाजा हनूज धड़धड़ाया जा रहा था। वो ऐनक लगाता स्लीपर पैर में रास्ता बाहर आया। छोटे चिकर की राहदारी घूर की दरवाजे तक आया और बाहर झांका। वहां घुंघराले बालों वाली एक औरत खड़ी थी, माथे में बल डाले। वो दरवाजा खटखटाई जा रही थी। सरमद ने पट खोला और गर्दन निकाल के बाहर झांका। जी, क्या हम अंदर बैठ के बात कर सकते हैं? वो बिना किसी तमीज के बोली। मैं आपको नहीं जानता, आपको किस सिलसिले में बात करनी है? तुम इसकी इजाजत क्यों मांग रही हो? हम इससे बात के बगैर थोड़ी जाएंगे। दीवार की ओर से एक लड़की निकली। इसने सियाह ट्राउजर और शर्ट पर सियाह हुडी पहन रखी थी। खुद में सर ढक रखा था, लेकिन चिरा हुआ था। इसे देख के सर मचल रह गया, लेकिन वो जेबों में हाथ डाले आगे आई और जॉगर की ठोकर से दरवाजा खोला। हटो सामने से। आप कौन है? यूं मेरे घर में क्यों चली आ रही हैं? सरमन ने वजारे जी खड़ा करके कहा, मगर वो इसे रोक नहीं सकता था। वो अंदर दाखिल हो चुकी थी। वो इसके पीछे अंदर लपका। लॉन्च पर इसने खड़ी गर्दन घुमा घुमा के तरफ का जायजा ले रही थी। आप कौन है? देखिए, मैं पुलिस को कॉल कर सकता हूँ। ताली ने चेहरा मोड़ के सर से पैरों तक देखा। तुम मेरी तवक्का से छोटे और कमजोर हो, मुझे बात करने दो। दातन दबी आवाज में बोली और सामने आई। देखिए सरमद साहब,
हम दोनों जानते हैं कि असरा महमूद के लिए आप क्या करते थे। दातन ने साथ ही एक कुर्सी इसके लिए रखी। मुख्तालिया को घुरते हुए वहां बैठा जो टीवी कैबिनेट से टिक लगाए खड़ी जेबों में हाथ डाले इसे देख रही थी। मुझे नहीं मालूम आप क्या कह रहे हैं। मैं असरा के वालिद का मुलाजिम था मगर मैं इनसे कई साल नहीं मिला। सरमद, दातन ने सब किया। मेरे पास गवाह हैं जो गवाही देंगे कि आप असरा के साथ ज्वेलरी सीट पे एक सेट की कीमत लगवाने गए थे। क्या ये जुर्म है? वो बिगड़ के बोला। जिस काम के बदले उन्होंने ये सेट दिया वो जुर्म था। उन्होंने मुझे कोई सेट नहीं दिया। वो माथे पे बल डाले बोला। देखिए सरमा, दातन ने फिर से कोशिश की। उन्होंने आपसे आर्सेनिक मंगवाया था। आप सिर्फ अदालत में ये बता दें तो तालिया बरी हो जाएगी। किसी को आर्सेनिक ला के देना जुर्म नहीं है, लेकिन मेरा क्रेडिट कार्ड हैक करके मेरे नाम से एक ऑर्डर करना जुर्म है। तालिया तड़क के बोली तो सरमद ने चेहरा मोड़ के उसे देखा। दातन ने तंबीही नजरों से घूरा मगर वो सरमद को देख रही थी। मुझे नहीं मालूम आप क्या कह रही हैं। आप पुलिस नहीं है ना आप मुझे गिरफ्तार करवा सकती। मुझे अपने राइट्स मालूम है। मैं कोई गवाही नहीं दूंगा। आप क्या कर लेंगी मेरा? इसका फिक्र मुकम्मल नहीं होता जब वो किसी चील की तरह इस पे झपटी। इसे गुद्दी से पकड़ के इसका चेहरा जबरदस्ती झुका के मेज से लगाया और उस पे झुकी। हक्का बक्का सी दातन उसे तो रोकती रह गई, लेकिन तालिया सरमद के कान के पास झुक के खुर्रा रही थी। तुमने अपनी मालकिन के साथ मिलकर मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मेरी आजादी छीन ली और तुम मुझसे पूछते हो मैं तुम्हारा क्या करूंगी? तालिया प्लीज मुझे बात करने दो। मैं इससे बात करने नहीं आई। वो सरमद का गाल में से लगाया, इसकी गर्दन दबोचे कह रही थी। सरमद का सांस घुटने लगा। इसने हाथों से मजामत करनी चाहिए, लेकिन तालिया ने इसका कलाई को मरोड़ के उसकी कमर से लगा दिया। वो बेबस होकर रह गया। मैं पुलिस नहीं हूँ। पुलिस तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। मैं पुलिस से ज्यादा बुरी हूँ। सरमद, अब मेरी बात गौर से सुनो। परसों सुबह तुम अदालत में पेश होगे और तुम मेरे हक में गवाही दोगे। वो चबा चबा के कह रही थी, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। इतनी महारत से कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम मुझे नहीं जानते सरमद। मैं अपनी बर्दाश्त की इंतहा पे हूँ। इसकी गर्दन मजीद गोद से नीचे झुकाएगी, गोया अभी इसका चेहरा मेज के शीशे में गाड़ देगी। और ये मत समझना कि मैं कोई मेहरबान लड़की हूँ जो ऐसा नहीं करूंगी। मैं सफेद नहीं हूँ, मैं बहुत स्याह हूँ और मैं ये कर सकती हूँ क्योंकि तुम मेरी तवक्का से बहुत छोटे और कमजोर हो। झटके से इसकी गर्दन छोड़ी और सीधी हुई। वो गुद्दी पे हाथ रखे खांसता हुआ सीधा हुआ। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, आंखों में पानी था। इसने चंद गहरे सांस लिए और आंखें उठा के तालिया को देखा तो इनकी आंखों में खौफ था। मैं बात कर रही थी ना तालिया। दातन ने अफसोस से उसे तंबी की तो सिया होठ वाली लड़की ने कंधे उचकाए। व्हाटएवर, और फिर से सीने पे बाजू लपेट लिया। सरमद फिर से कहा। दातन ने इसकी तरफ मुतवज्जो हुई। तुम जानते हो तुम्हारे दिए गए आर्सेनिक से असरा महमूद की मौत वाकई हुई है। वो मेरी मालकिन थी, मैं इनका वफादार था। मुझे नहीं मालूम था कि वो अपने लिए जहर मंगवा रही हैं। वो आपके धीमी आवाज में बोला और गर्दन झुका दी। मुझे मालूम होता तो मैं ना देता। आई एम सो सॉरी। मैं समझा वो किसी और के लिए है। उन्होंने कहा था इन्हें कीमती जान लेनी है। वो इनकी अपनी जानती है। आई एम सो सॉरी। मैं खुद कई साल से गिल्ट में हूँ। सरमद, मैं तुम्हारे माली हालात देख सकती हूँ। तुमने इन नाजायज कामों से कमाई गई रकम जुए में उड़ा दी है और तुम शदीद कसम परसी की जिंदगी गुजार रहे हो। दातन समझाने वाले अंदाज में बोली। हम क्रेडिट कार्ड हैक करने वाली बात गोल कर जाएंगे। तुमने सिर्फ ये कहना है कि असरा ने तुम्हें आर्सेनिक लाने को कहा था। तुम्हें मालूम नहीं था कि वो खुदकुशी कर लेंगी। अगर तुम हमारे हक में गवाही दे दो तो चेतालिया तुम्हें बहुत बड़ी रकम देंगी। तुम कई बरस के लिए सेटल हो जाओगे। वो नरमी से समझा रही थी। सरमद सर उठा के तालिया को देख रहा था जो अभी तक उसे घूर रही थी। इसने इस बात में सर हिला दिया। ओके, मैं गवाही दे दूंगा। सुनो मेरी बात। तालिया फिर से घुर्राई। मेरे लोग तुम पे नजर रखे होंगे। तुम अदालत में पेश होने से पहले भागोगे नहीं, वरना वो तुम्हें देखते ही गोली मार देंगे। समझे तुम? कहने के साथ इसने पैर से छोटी मेज को ठोकर मारी। इस पे रखी टोकरी और टाइम पीस नीचे जा गिरे। फर्श पे गिरने से घड़ी का शीशा चिकना शुरू हो गया। सलमान ने किरचों से नजर उठा के ताली को देखा और अस्पताल में गर्दन हिला दी। साथ ही टूट निकला। मैं गवाही दे दूंगा, लेकिन मुझे पैसे पहले चाहिए होंगे। पैसे काम के बाद होंगे। सुना तुमने? वो सिर झटक के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अब मैं इस शख्स को पे करूंगी जिसने मुझे फंसाया था। वाह, मैं तुम्हारा कार में इंतजार कर रही हूँ। दातन ने अफसोस से सिर हिलाया और वापस उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। अब वो धीरे धीरे बोलते इससे पैसों के मामला तय करने लगी। साल वाला दिन बहुत रोशन था। आज आसमान पे बादल थे, ना हवा तेज थी, बस सुनहरी सूरज था जो तेज चमक रहा था। सरमा की धूप की तपिश भी अजीब होती है, जितना झुलसा है उतना ही सुकून आता है। ऐसे में वान फतेह अपनी डाइनिंग टेबल की सरबराही कुर्सी पर बैठा नाश्ते में मसरूफ था। सिकंदर सूप में मलबूस तैयार लग रहा था। अशर भी तैयार था। वो जानता था वो दोनों अदालत में जा रहे हैं। इसने इनसे कोई सवाल नहीं किया। अलबत्ता नाश्ता करती है जुलियाना एकदम खनकारी। सब निगाहें उठा के उसे देखने लगी। क्या ताली मुराद आज अदालत आएगी? हाँ, जाहिर है वो ना पेश हुई तो इसकी जमानत मंसूख हो जाएगी। अशर ने नैपकिन से हाथ साफ करते हुए कहा, और अगर इसके खिलाफ फैसला आया तो अच्छा नहीं होगा। फैसले एक दिन में नहीं आ जाते। फातिह ने हमवार आवाज में कहा तो जुलियाना फौरन बोली, मैं इसलिए कह रही हूँ कि तालिम मुराद आजकल जरा सी बात पे बहुत ओवर रिएक्ट कर रही हैं। वो तन से बोली,
इसे जैसे तालिया में बहुत गुस्सा था। जिस तरह का सलूक उन्होंने हमारे सामने दिखाया ऐसा वो मीडिया के सामने दिखा रही हैं। कल उन्होंने एक सहाफी को थप्पड़ खींच मारा। क्यों? कातिल ने चौंक से देखा। आप सोशल मीडिया नहीं देख रहे हैं अबंग? अशरफ ने मुस्कुराते हुए कहा। कुर्सी पर अकेली और उठ खड़ा हुआ। एक स्टोर में एक सहाफी ने तालिया से सवाल करते हुए असरा महमूद के कातिल कहते थे उसने उसे थप्पड़ मार दिया। राहगीर पर यूं थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। गुजरते हुए बाकी राहगीरों ने वीडियो बना ली। अब तालिया बहुत हद तक अनस्टेबल हो चुकी है। मुझे बेगुनाह होते हुए कोई कातिल कहेगा तो मैं इससे भी ज्यादा करूंगा अशर, वो नाकाबरी से बोला और प्लेट परे धकेलते हुए वहां से उठ गया। ताली का जिक्र इसका आए रोज एक नया मसला हर शय तकलीफ देती थी। सरमा की झुलसाती धूप अदालत की इमारत पे भी फैली थी। कैमरों के चलते बुझते फ्लैश की रोशनियां जो कमरे अदालत पहुंचने तक पहले की आंखों में पड़ते रहे थे इसको अंदर तक झुलसाने के लिए काफी थी। लेकिन वो सियाह हेड सर पे जमाए सपाट चेहरे के साथ खामोशी से रिपोर्टर्स के हुजूम से निकल आई थी। आज अदालत में पेश होने का दिन था और इसके पास गवाह थे। तालिया मुराद को यकीन था कि इसका गवाह इसको बरी करवा लेगा। जज अपना डेस्क संभाल चुकी थी। वकील अपनी अपनी मेज पर बैठे थे। अदालत की कार्रवाई शुरू हुई तो हर तरफ से खामोशी छा गई। प्रोसिक्यूटर जज की तरफ रुक के अपनी इफ्तिताही दलाइल देने लगे। वो यहाँ से प्रोसिक्यूटर की पूछ देख सकती थी। वो नौजवान था और जोश था और इसकी आवाज में तालिया मुराद के लिए तनफ्फुर था। तालिया मुराद एक खतरनाक औरत है। योर ऑनर वो हाथ हिलाते हुए बता रहा था। ये बहुत पुरानी से वन फतेह और मिसेस असरा महमूद की जिंदगी में दाखिल हुई। इस ट्रायल के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह उन्होंने असरा महमूद की कीमती नवादरात हासिल करने की कोशिश की। फिर नवादरात को वसत लिखवा के असरा को मौत के घाट उतारा। तालिया वलीन कतार के एक नशिस्त पर बैठी थी। इसने नजरें घुमाई। दोनों तरफ की कुर्सियों के दरमियान में गुजरने का रास्ता था। इसके दूसरी जानिब पहली कतार में अशर बैठा था। साथ सिकंदर मौजूद था। वो भी अशर की तरह सियाह सूट पहने इस मुकदमे के लिए तैयार होके आया था। तालिया ने चेहरा दूसरी जानिब मोड़ा। इसके साथ वाली कुर्सी पे एडम बैठा था। इसे देख के वो सादगी से मुस्कुरा दिया। वो मुस्कुरा भी ना सकी, गर्दन सीधी की। मेरा पहला गवाह है सरमद जहरी। प्रोसिक्यूटर कह रहा था। सरमद ने रज़ाकाराना तौर पे गवाही की ख्वाहिश जारी की है। इसके पास केस से मुतालिक अहम मालूमात हैं। प्रोसिक्यूटर ने मुस्कुरा के पीछे बैठे अशर को देखा। अशर भी मुस्कुराया। तालिया ने गर्दन मोड़ के गौर से इसकी मुस्कुराहट देखी। फिर सपाट चेहरा सामने को मोड़ लिया। आज इसके चेहरे पे कोई तासुर न था। कुछ देर बाद सरमद कटहरे में रखी कुर्सी पर बैठा हलफ ले रहा था। वो आज बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, पुरसुकून और पूरा तमाम। सूट भी पहन रखा था और कदरे मुअत्तबर दिखाई दे रहा था। आपका असरा महमूद से क्या ताल्लुक है? चक्कर से नीचे खड़ा प्रोसिक्यूटर सवाल का आगाज करने का सरमद ने उसी एतमाद से जवाब दिया। मैं उनके वालिद का मुलाजिम था। आपकी असरत से आखिरी दफा मुलाकात कब हुई? इनकी मौत से भी शायद 3 साल पहले। मैं इनसे बार सा नहीं मिला था। तालिया ने एडम को देखा और एडम ने तालिया को। फिर दोनों सामने देखने लगे। आप इनकी मौत के बारे में क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं। तो फिर आपने गवाही देने के लिए खुद को क्यों पेश किया? प्रोसिक्यूटर के सवालात रटे रड़ाए थे जैसे वो दोनों रिहर्सल करके आए थे, क्योंकि परसों रात आपकी ये मुलज़िमा अपने एक साथी खातून के साथ मेरे घर आई थी। वो सामने कुर्सी पर बैठी तालिया की तरफ उंगली उठा के कह रहा था। वो सपाट चेहरे के साथ उसे देखी गई। ये जबरदस्ती मेरे घर में दाखिल हुई। इन्होंने मुझे गर्दन से पकड़ा, मुझे जदोकोप किया। इसने कॉलर का बटन खुला, गर्दन का निशान दिखाया। उन्होंने मेरे घर में तोड़फोड़ की है। मुझे धमकी दी कि अगर मैंने अदालत में पेश होकर इनके हक में बयान न दिया तो ये मुझे कत्ल कर देंगी। चबा चबा के बोला। तालिया ने आंखें सख्ती से मींची। बहुत सी मुतजब नजरें उसकी तरफ उठी। इनमें से कुछ मलामती भी थी। और ये आपसे क्या बयान दिलवाना चाहती थी? पता नहीं क्या कह रही थी। कुछ कह रही थी ये कहो कि मैं असरा महमूद को आर्सेनिक मैंने ना कर दिया। साथ मुझे भारी रकम की पेशकश की। मैं अदालत से इस्तदा करता हूँ कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। मुझे तालिया मुराद से जान का खतरा है। वो इतने एतमाद से कह रहा था जितने एतमाद से सच बोलने वाला सच बोलता है। कमरा अदालत की ऊंची खिड़कियों से छन के अंदर आती धूप कटहरे पे सीधी पड़ रही थी। इस रोशनी में वो मोहतबर लग रहा था। यहाँ सारे खेल सच और झूठ के थे या फिर वक्त के। प्रोसिक्यूटर ने रिमोट उठा के बटन दबाया तो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर पे तस्वीर चलने लगी। समझ के घर के लॉन्च का मंजर है। वहाँ हर शय टूटी बिखरी पड़ी थी। सिर्फ घड़ी और टोकरी नहीं बल्कि बर्तन भी टूटे पड़े थे। उन्होंने यकीनन तालिया के जाते ही मजीद तोड़ फोड़ करके तस्वीर ली थी। गिल्टेंस आपका गवाह। योर विटनेस। प्रोसिक्यूटर वापस अपने डेस्क की तरफ आते हुए अहमद निजाम से बोला। अपनी कुर्सी पर बैठ गया। एक मुस्कुराती नजर अशर पर डाली। इसने मुस्कुरा के सर को खान दिया। अहमद निजाम ने गहरी सांस ली और खड़े हुए। फिर धीरे धीरे चलते हुए कटारे के सामने आए। तो आप असरा महमूद के मुलाजिम हैं? मैं इनके वालिद का मुलाजिम था। और आप ये कह रहे हैं कि आप परसों रात तालिया मुराद आपके घर आई थी? अहमद निजाम ताज्जुब से पूछा था। बिल्कुल। और उन्होंने आपको धमकाया, जान से मारने की धमकी दी? जी। वो मुस्कुरा के बोला। अहमद निजाम चंद लम्हे उसका चेहरा देखते रहे। फिर कहा मेरे पास आपके लिए सिर्फ एक सवाल है। उन्होंने वक्फा दिया। तालिया मुराद किस वक्त आपके घर आई थी? करीबन रात के 3 बजे। और वो कब तक वहां रही? 10 से 15 मिनट। आपको वक्त कैसे याद है? क्योंकि उन्होंने मेरी घड़ी तोड़ी थी। इस पर वक्त वहीं जम गया था। 3:15 यानी 3 बजे से
3:15 तक तालिया मुराद आपके घर थी। जी। अहमद निजाम जज की तरफ मुड़े। योर ऑनर, मैं इस गवाह से मजीद सवाल पूछूंगा, लेकिन मैं इससे पहले एक रीजल गवाह पेश करता हूँ। प्रोसिक्यूटर कोर्ट से उठा। योर ऑनर, मुझे इस बात में एतराज है, अहमद निजाम अदालत का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इनके गवाह के पेश होने तक देर हो जाएगी और मेरा गवाह इसी कमरे में मौजूद है, बल्कि गवाह हूँ। अहमद निजाम ने सामने बैठे पुलिस कमिश्नर की तरफ इशारा किया। ठीक है, बुलाइए उनको। जज ने कागज पे कुछ नोट करते हुए इजाजत दी। प्रोसिक्यूटर इसी को उससे वापस बैठा। पुलिस कमिश्नर ऊपर कटहरे तक आया, हलफ लिया और टेक लगा के कुर्सी पे बैठ गया। आप क्या काम करते हैं? मैं पुलिस कमिश्नर हूँ। और क्या आपके थाने में तालिया मुराद का केस है? जी। अभी सरमद साहब ने कहा रात के 3 बजे से 3:15 तक तालिया मुराद इनके घर पे मौजूद थी। क्या ये दुरुस्त है? ये नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। जहां अशर चौक के सीधा हुआ और सरमद ने ताज्जुब से कमिश्नर को देखा, वहीं सियाहट वाली लड़की दिल से मुस्कुराती। इसका गवाह पहुंचता हुआ वक्त, आज वक्त ने तालिया मुराद के लिए गवाही देनी थी। अदालत को बताइए कि ये नामुमकिन कैसे? पुलिस कमिश्नर ने चेहरा माइक के करीब किया और संजीदगी से बोला, क्योंकि परसों रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक तालिया मुराद हमारे थाने में हमारी हिरासत में थी। उन्होंने एक रिपोर्टर को थप्पड़ दे मारा था। रिपोर्टर ने पुलिस बुला ली थी। मैं पूरी रात वहीं बैठा इसी मामले को सुलझाता रहा था। मेरा पूरा थाना इस बात का गवाह है। हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस हैं। आप अहमद निजाम भी इनके साथ थे। अशर ने बेयकीनी से गर्दन मोड़ के तालिया को देखा, मुस्कुराते हुए सामने देख रही थी। सरमद ने अचंभे से गर्दन इधर उधर घुमाई। इसे समझ नहीं आया कि कमिश्नर झूठ क्यों बोल रहा है। क्या 3 बजे तालिया मुराद 15 मिनट के लिए आपकी नजरों से दूर हुई थी? हरगिज़ नहीं, वो सारा वक्त हमारी नजरों के सामने थी। वो मेरे ऑफिस में बैठी थी, ब्लाइंड्स खोले थे, सारा थाना उनको देख सकता था। आप सीसीटीवी चेक कर ले, ऑफिसर्स को बुला लें, बल्कि इस साफी को थप्पड़ मारने की वीडियो भी हमारे पास मौजूद है। इस पे टाइम स्टैम्प है, ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ये कल मेरे घर इसी वक्त आई थी। सरमद अपनी जगह से ऊंचा सा बोला। वो मुताज्जिब था, उलझा हुआ था, जिसने बेरहमी से रोका। अपनी बारी पे बोलिएगा। सरमद जब दोबारा कटहरे में आए थे, उसकी रंगत उड़ी हुई थी। अहमद निजाम ने मुस्कुरा के उसे देखा। इससे यही साबित होता है कि वो आपके घर नहीं आई, बल्कि आपको किसी ने इन पे इल्जाम लगाने को कहा है। वो आई थी, एक औरत भी साथ थी। उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी थी और पैसे देने की ऑफर भी की थी। जान से मारने की धमकी दी या पैसे दिए? लोग एक वक्त में एक चीज क्या करते हैं। मैं सच कह रहा हूँ। आपने कहा कि आपकी टूटी घड़ी पे वक्त 3:15 फ्रीज हो चुका है। सरमद, आपने वो घड़ी गालिबन खुद ही तोड़ी थी, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम था कि तालिया मुराद इस वक्त थाने में है। आपने सोचा कि वो अपने घर में होंगी और उनके पास कोई एलिबाई नहीं होगी। शायद मुझे वक्त बताने में गलती लगी होगी। अगर अभी क्राइम सर्च यूनिट आपके घर जाए तो उनको आपकी टूटी घड़ी पे क्या वक्त फ्रीज हुआ मिलेगा। वो इतनी देर से बोले कि सरमद गड़बड़ा गया। अब वो अपने बताए वक्त से नहीं फिर सकता था। इसने खुद देखा था घड़ी पे वक्त। तालिया मुराद एक ही वक्त पे 2 जगहों पे कैसे हो सकती थी? इसके पास वक्त की चाबी थोड़ी ही थी। ऑब्जेक्शन। प्रोसिक्यूटर अपना कर सका और जगह से उठा। जज और अहमद निजाम ने सवाली नजरों से उसे देखा। इसे समझ नहीं आया कि वो किस बात पे ऑब्जेक्शन करे। वो वापस बैठ गया। अशर झुक के खफगीसी से कुछ कहने लगा। वो जवाबन परेशानी से वजाहत देने लगा। अहमद निजाम वापस सरमद की तरफ मुड़े। तो आप मुझे ये बताएं कि तालिया मुराद एक ही वक्त में 2 जगहों पे कैसे हो सकती हैं, सिवाय इसके कि इनके पास कोई टाइम टर्नर हो जिससे वो वक्त को पीछे कर सके। अहमद निजाम ने कमरा अदालत की तरफ चेहरा मोड़ा और बाआवाज बुलंद कहा, और हम सब जानते हैं कि वक्त की कोई चाबी नहीं है। गया वक्त हाथ नहीं आता, ना आज तक, ना वक्त किसी के लिए रुका है ना। तालिया मुस्कुरा दी। एडम भी मुस्कुरा दिया। फिर वो उसकी तरफ झुका और आस्था से बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये काम कर जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ। कटहरे में खड़े सरमद का दिमाग साए साए कर रहा था और वो बार बार बेयकीनी से पहली रो में बैठी सियाह हैट वाली लड़की को देखता था। वो आज जा रहे अंदाज वाली लड़की नहीं लगी थी। वो बस सादगी से मुस्कुरा रही थी। आपकी बात इतनी अहम काना है सरमद साहब कि मैं इन पे कोई सवाल ही नहीं करना चाहता। आगे चलते हैं। अहमद निजाम ने अफसोस से कहा तो सरमद ने दिखा, जिसने सर झटक के कागज पे कुछ लिखा। प्रोसिक्यूटर बेरहमी से अशर को सरगोशी कर रहा था और हाजरीन चुपती नजरों से सरमद को देख रहे थे। वो सच कह रहा था। वो जानता था कि उससे ही सच कह रहा है, लेकिन कोई इसका यकीन करने को तैयार न था। सरमद, मेरे पास आपके फोन रिकॉर्ड्स है। इस वक्त तालिया मुराद तो आपके घर नहीं गई थी, लेकिन आपने इस रात ये कॉल जरूर की थी। अहमद निजाम एक कागज उसे दिखाते हुए कह रहे थे, और ये कॉल आपने अशर महमूद की थी। सरमद ने खुश लबों पे जबान फिरी। फिर बेचारगी से नीचे बैठे अशर को देखा, जिसने एकदम पहलू बदला। सिकंदर ने गर्दन मोड़ के अशर को देखा, फिर सरमद को। आपने अशर को कॉल क्यों की थी? मुझे याद नहीं। आप काफी देर तक इनसे बात करते रहे। आपने इनसे 4 दफा कल से आज तक बात की, लेकिन आपको याद नहीं क्या मैंने कहा था तालिया मुराद पे तशद्दुद का इल्जाम लगाने के लिए? कॉल रिकॉर्ड्स झूठे हैं। वो गर्दन कड़ा के बोला। साथ ही परेशान नजरों से सामने कुर्सी पर बैठे अशर को देखा। वो लबों पर मुट्ठी रखे उसे घूरे जा रहा था। मैं आपकी याददाश्त ताज़ा की देता हूँ। इस औरत को पहचानने में आप। अहमद निजाम ने फोल्डर से एक फोल्डर निकाल के इसके सामने किया। प्रोसिक्यूटर बेचैनी से उठा।
इस सवाल का किससे क्या ताल्लुक है? अहमद निजाम तहम्मुल से उसकी तरफ घूमे। प्रोसिक्यूटर साहब, गवाह का नाम आपने फहरिस्त में लिखा था। इसके मुतालिक पूरा रिसर्च करके मैं लाया हूँ। मैं आपके लिए आपकी जॉब आसान कर रहा हूँ। कितना ही अच्छा हो कि आप तहम्मुल से गवाह के जवाब देने का मौका दें। इनका अंदाज ऐसा दो टोक था कि वो कुछ कह ना सका। जज साहिबा ने भी नागवारी से एतराज रद्द किया तो वो माथे पे बल लिए वापस बैठ गया। अहमद निजाम फुर्सत से वापस सरमत की तरफ मुड़े। मैं उसको नहीं पहचानता, इसने साफ इनकार की। ये लड़की एक जमाने में असरा महमूद के घर बतौर आया काम करती थी। इसको हायर करने के लिए कुछ अरसे बाद इसने अपने साथी के साथ आरियाना बिनते फातिह को अगवा किया और एक हादसे में दोनों की मौत वाक़ हुई। ये लड़की आपके कालीनों की दुकान पे भी काम करती थी। मैंने इस लड़की की फैमिली को भी ट्रेस किया है, मुझे याद नहीं सरमत साहब। मेरा ख्याल है असरा को इल्म नहीं था कि इस लड़की को आपने भेजा था। आप इसके जरिए आरियाना को अगवा करके तावान लेना चाहते थे, लेकिन बच्ची की हादसाती मौत के बाद आप खामोश हो गए। कई बरस बाद किसी तरह असरा को इसका इल्म हो गया। उन्होंने आपको कॉल की अपनी मौत से चंद हफ्ते कबल। वो आपकी दुकान में आपसे मिलने भी गई। आपकी दुकान में काम करने वालों को उनकी आमद का दिन तक याद है। असरा ने आपको कानून के कटहरे में लाने की धमकी भी दी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, मगर वो कहे जा रहे थे आपने अपने एक दोस्त को कांटेक्ट किया। ये आदमी अब जेल में होता है और ये इसका बयान हल्फी है। अहमद निजाम ने एक कागज जज के डेस्क पे रखा। ये आदमी आपका जाना पहचाना दोस्त था। आपने इससे आर्सेनिक खरीदा, फिर आपने वो जहर आलूद केक असरा को भेजे। असरा को कत्ल करने की सबसे बड़ी वजह आपके पास है, क्योंकि वो आपको गिरफ्तार करवाना चाहती थी। ऐसा नहीं हुआ, मैंने इनका कत्ल नहीं किया, वो मेरी मालकन थी। आपने कहा उनके वालिद आपके मालिक थे। हाँ ठीक है, मैं इनका वफादार मुलाजिम था, ठीक है, मैं इनसे मिला, वो मेरी शॉप पे आई, लेकिन उन्होंने मुझसे सिर्फ आर्सेनिक मंगवाया था। किसी को आर्सेनिक देना कोई जुर्म नहीं है। वो जज्बाती होके नहीं कह रहा था, वो तेजी से कह रहा था। अदालती कमरे में दबी दबी सरगोशियां बुलंद हुई। सिकंदर ने बेयकीनी से उसे देखा, फिर अशर को, फिर उसने अशर से कुछ पूछा, लेकिन वो जवाब दिए बिना सरमत को घूरता रहा। आपके पास क्या सबूत है कि आर्सेनिक आपने अपने लिए खरीदा या उनके लिए? वो पूछ रहे थे। जज अपनी एना के ऊपर से गौर से सरमत को देख रही थी। अशर ने झुक के प्रोसिक्यूटर को मुखातिब किया, लेकिन पहली दफा इसने हाथ उठा के अशर को रोक दिया। वो इस आदमी की कहानी सुनना चाहता था। उन्होंने बदले में मुझे डायमंड नेकलेस दिया था। आप इस ज्वेलरी स्टोर पे चले जाएं, इनके पास रिकॉर्ड होगा। मैंने वो डायमंड बेचे भी थे। अगर वो मुझ पे खफा होती तो मुझे वो सेट ना देती। इसका एतमाद बढ़ने लगा। तालिया मुराद मेरे ऊपर कत्ल का इल्जाम डालना चाह रही है, हालांकि ये सच नहीं है। मैंने सिर्फ इनको आर्सेनिक दिया था। आप ये कह रहे हैं कि असरा ने आर्सेनिक खुद मंगवाया था? योर ऑनर। प्रोसिक्यूटर फिर से उठा। अगर मिसेस असरा को वो आर्सेनिक इस शख्स ने दिया था, तब भी इससे ये बात साबित नहीं होती कि इनका कत्ल इसी आर्सेनिक से हुआ है। तालिम मुराद के पास वसाइल की कमी है, वो कहीं और से भी ले सकती हैं। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ, तहम्मुल से बोले। सरमत साहब, जिस आईपी एड्रेस से तालिया मुराद का क्रेडिट कार्ड हैक करके केक ऑर्डर किए गए थे, वो इन कॉफी शॉप्स के थे जो आपकी दुकान के 200 मीटर रेडियस में आई थी। आपके फोन के जीपीएस डाटा के मुताबिक आप भी इन्हीं जगहों पर उसी वक्त मौजूद होते थे जब ये हैक हुआ। आप इतने दिन इत्तेफाक से इन्हीं जगहों पे क्यों थे? मैंने कोई कार्ड हैक नहीं किया, मुझे इन केक्स का कुछ नहीं पता। मैंने सिर्फ आर्सेनिक दिया था, और आर्सेनिक देना जो नहीं होता वो हाँपते हुए कह रहे थे। इसे अदालत आना ही नहीं चाहिए था। अगर अशर ना कहता तो वो कभी यहाँ ना आता, वो रुपोश हो जाता। ये सारा खेल तालिया मुराद का था और इसकी दोस्त, वो इसके साथ गुड कॉप और बैड कॉप खेल के गए थे। वो इसे किसी और तरह अदालत नहीं ला सकते थे। मालूम था वो अशर से रब्ता करेगा, अशर इसको अदालत में जाके तालिया केस खराब करने को कहेगा। वो खुद चल के इनके फंदे में आ गया था। असरा ने आर्सेनिक मंगवाने की कोई तो वजह बताई होगी। उन्होंने कहा था इन्हें एक जान लेनी है। मुझे नहीं मालूम था कि वो चुप हो गया कि वो अपनी जान लेने जा रही हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि असरा महमूद ने खुदकुशी की है? मुझे नहीं मालूम, मैंने सिर्फ आर्सेनिक ला कर दिया था, ये जुर्म नहीं है। वो छुप के बोला। अहमद निजाम चलना में उसे देखते रहे। मेरा आखिरी सवाल। उन्होंने गहरी सांस ली। आपने किस किस को बताया था कि असरा महमूद ने आपसे आर्सेनिक मंगवाया है? सरमत की रंगत फीकी पड़ी। किसी को नहीं सरमत साहब। ये आपके जमाने के फोन रिकॉर्ड्स हैं। उन्होंने कागजात का एक पलंदा जज साहिबा की मेज पे रखा। आपने असरा से मिलने के बाद से इनकी मौत तक कई दफा एक नंबर पर कॉल की और इस नंबर पर बात भी की। ये नंबर उस जमाने में अशर महमूद के जेर इस्तेमाल था और उन्हीं के आईडी कार्ड पे रजिस्टर्ड है। क्या आपने अशर साहब को बताया था कि इनकी बहन ने आर्सेनिक मंगवाया है? कमरे अदालत में जैसे सबको साफ सूंघ गया। सिकंदर ने गर्दन मोड़ के अशर को देखा, बेयकीनी से, सदमे से। ऐश, इसने अशर को कोनी से झंझोड़ा, लेकिन अशर ने हरकत न की। वो सामने देखता रहा। इसके तासुरात बिल्कुल सपाट थे। मुझे याद नहीं, वो अकलाया। सरमत, मैं आपके लैपटॉप की हार्ड ड्राइव और आपके ईमेल अकाउंट से लेकर आपकी हर चीज का रिकॉर्ड कोर्ट में मंगवा लूंगा। पुलिस की टीम
آپ کی ایک ایک کال ایک ایک موومنٹ کو ماضی میں ٹریس کر لے گی. یہ وزیر اعظم کی بیوی کا قتل کس ہے؟ صرف سچ آپ کو بچائے گا. احمد نظام نے اونچی آواز میں دوہرایا کہ آپ نے کسی اور کو بتایا تھا کہ اسرا محمود نے آپ سے زہر منگوایا؟ میں نے صرف اشر صاحب کو بتایا تھا. وہ اشر کو نہیں دیکھ رہا تھا. اشر کی چپتی نظریں اس پہ جمی تھی. اس کی آنکھیں اتنی گلابی ہو رہی تھی کہ لگتا تھا کہ خون بہ نکلے گا. لوگ مڑ مڑ کے اشر کو دیکھ رہے تھے. آپ جانتے تھے ماما نے اس سے زہر منگوایا تھا؟ سکندر دبی آواز میں کر رہا ہے. یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. وہ بڑبڑایا. سکندر نے چہرہ موڑ لیا. اس کے ماتھے پہ بلتی اور آنکھوں میں نمی تھی. اور عدالت کو بتائیں اشر صاحب نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ خاموشی سے اسرا میم کو آرسینک مہیا کر دو. سربند نے چہرہ چکا دیا. دیٹس آل یور آنر. احمد نظام جج کے سامنے جا کھڑے اور کہنے لگے اسرا محمود نے اس شخص سے آرسینک منگوایا تھا. جو کیک وہ مبینہ طور پہ تالی مراد نے بھیجے ان پہ آرسینک نہیں لگا ہوا تھا. اس بات کے لیے ہمارے پاس گواہ ہے. کون؟ تالی نے چونک کے سر اٹھایا. پردھان منتری خود. ان کا کہنا ہے کہ کیک پہ آئسنگ نہیں تھی. اگر عدالت ان کو طلب کرے تو وہ آ کر خود ہی گواہی دیں گے. فی الحال یہ ان کی طرف سے حلفیہ بیان ہے. انہوں نے ایک اور کاغذ جج صاحبہ کے سامنے رکھا. تالی کے گلے میں آنسو کا گولا اٹکنے لگا. لیکن اس شام سے واپسی ممکن نہ تھی. کیک جس نے بھی بھیجے یہ معاملہ حل کرنا پولیس کا کام ہے. احمد نظام آپ کہہ رہے تھے لیکن میں یہ بات ثابت کر چکا ہوں کہ آرسینک اسرا محمود نے خود منگوائی تھی. جناب علی اسرا محمود کی موت قتل نہیں خودکشی تھی. اور اگر اس میں کسی کا قصور ہے تو دو لوگوں کا. ایک یہ شخص سرمد کی طرف اشارہ کیا جس نے ان کو زہر لا کے دیا اور دوسرا اشر پیچھے حاضرین میں بھی بیٹھے اشر کی جانب بازو بلند کیا جس کو معلوم تھا کہ اس کی بہن زہر منگوا رہی ہے اور زہر کسی کو شفا نہیں دیا کرتا. اس کا کام جان لینا ہی ہوتا ہے اپنے یا کسی اور کی. لیکن اشر محمود نے یہ ہونے دیا. میں عدالت سے استدعا کرتا ہوں کہ تالیہ مراد کے اغوا کاروں کے کنٹینر سے ملنے والے خون اور ڈی این اے کے سیمپل اشر محمود کے سیمپل کے ساتھ میچ کی جائے. مجھے شک ہے کہ عدالت کو وہاں سے حیرت انگیز نتائج ملیں گے. اشر سر چٹکتے ہوئے اٹھا کوٹ کا بٹن بند کیا اور سیدھا دروازے کی طرف بڑھ گیا. ابھی وہ درمیانی راستے کے وسط تک پہنچا تھا جب جج صاحبہ کی آواز سنائی دی. آپ کہاں جا رہے ہیں اشر صاحب؟ اس نے کوف سے آنکھیں میچی اور رک گیا. اب وہاں سے نکلنا اتنا آسان نہ تھا. عدالت سے واپسی کے سفر میں ان روشنیوں میں اضافہ ہو چکا تھا. جھلستی دھوپ آنکھوں میں پڑ رہی تھی. اوپر سے کیمروں کے چمکتے فلیش. نگاہیں چندھیا گئی تھی. شاید اس کی آنکھیں چندھیائی ہوئی تھی. وہ کسی خواب کسی کیفیت میں باہر آ رہی تھی. ایڈم اس کے ساتھ تھا اور رپورٹرز کا ہجوم اس کے سامنے مائک اور کیمرے اٹھائے چلا چلا کے پوچھا تھا. چیتالیہ عدالت نے آپ کے ٹرائل کو مس ٹرائل قرار دے کے آپ کو ہر الزام سے بری کر دیا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ کیا آپ کو اشر محمود نے اغوا کیا تھا؟ کیا اشر محمود اپنی بہن کا قتل کروا رہا تھا؟ کیا عدالت سرمد کو چھوڑ دے گی؟ ہر شے سلو موشن میں ہو رہی تھی. ایڈم رپورٹر سے بات کر رہا تھا. وہ بس خاموشی سے آگے بڑھ رہی تھی. ہر الزام اور ہر جرم سے آزاد. کچھ رپورٹر ایسے تھے جو دور گاز پہ کھڑے اپنے کیمرہ مینوں کی طرف چہرہ کیے مائک اٹھا کے رپورٹ پیش کر رہے تھے. وہ کیک کس نے بھیجے ہم نہیں جانتے. ناظرین عدالت نے سرمد زہدی کو گرفتار کر کے ری ٹرائل کا حکم دیا ہے. تالیہ مراد اب آزاد ہیں. آزاد تو اشر محمود بھی ہیں لیکن وہ ری ٹرائل سے پہلے تک ملک نہیں چھوڑ سکتے. سوال یہ ہے کہ کیا کسی ملک کو آرسینک مہیا کرنا کسی ملک میں کسی کو آرسینک مہیا کرنا جرم ہے؟ آرسینک ہوتا کیا ہے؟ یہ کن کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اس بارے میں ہم آپ کو ایک ڈاکومنٹری دکھانے جا رہے ہیں. فاصلے پہ کئی رپورٹرز کھڑے اپنے اپنے چینلز کے کیمرے کو دیکھتے ہوئے اپنی اپنی عدالت سجائے ہوئے تھے. وہ سیاہ شیشوں والی کار میں بیٹھی اور دروازہ بند کیا. اس لمبی کار میں نشستیں آمنے سامنے بنی تھی. ایڈم اس کے ساتھ بیٹھا تھا اور احمد نظام سامنے. کار چل پڑی. رپورٹرز کے سوالات سے دور عدالت کی عمارت کی دھوپ سے دور احمد نظام نے بلا کر گہری سانس لی. یہ خون کے نشانات والے کنٹینر کا آپ نے بہت رسک لیا ہے چیتالیہ. مجھے پہلے معلوم ہوتا تو آپ کو روک دیتا لیکن مان لیں کہ اس سے فرق پڑا ہے. اشر محمود ایک لمبے عرصے کے لیے مشکوک ہو گیا ہے لیکن وہ اس کیس سے بری ہو جائے گا. مجھے معلوم ہے وہ بری ہو جائے گا. سرمد بھی بری ہو جائے گا. کسی کو سزا نہیں ہوگی مگر میں سروائیول موڈ میں ہوں. احمد نظام صاحب مجھے خود کو بری کروانے کے لیے وہ سب کرنا تھا جو میں کر سکتی تھی. اشر جانتا تھا کہ اسرا زہر منگوا رہی ہے تو اس نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ ایڈم نے سوچتے ہوئے افسوس سے پوچھا. کیونکہ اسرا اور فاتح کے تعلقات اچھے نہیں تھے. اشر نے سمجھا ہوگا کہ یا تو وہ فاتح کو مارنا چاہتی ہے یا تالیہ کو. دونوں صورتوں میں اشر کا فائدہ تھا. یعنی اتنے سالوں سے اشر جانتا تھا کہ زہر اسرا نے منگوایا تھا. پھر بھی اس نے اپنے آپ کو ہر جگہ مورد الزام ٹھہرایا. آپ کو مورد الزام ٹھہرایا؟ ایڈم نے چچ کرتے ہوئے سر ہلایا اور وہ پرسراسیت سے مسکرائی. میں نے اشر کو اس کیس میں اس لیے پھنسایا کیونکہ وہ اس ملک کا پردھان منتری بننا چاہتا ہے. لیکن اس دھبے کے بعد الیکشن تو کیا اس کو پارٹی کا کوئی اہم عہدہ بھی نہیں ملے گا. بعد میں وہ بری ہو جائے گا. ثبوت ناکافی ہوں گے لیکن ایتھکس کمیٹی اس کو دوران تفتیشی پارٹی سے سائڈ لائن کر دے گی. میں نے کہا تھا نا میں سیاہ ہوں ایڈم. آپ سیاہ نہیں ہے چیتالیہ. احمد نظام سادگی سے مسکرا کے بولا. وہ بھی مسکرا دی. لیکن آر شور کہ آپ نے وقت کو روکنے کے لیے کوئی گھڑی استعمال نہیں کی تھی؟ تالیہ ہنستی. نہیں
हमने सिर्फ वही किया था जो हमें करना आता है। सरमत एक ही जगह से शाम की चाय पीता है, हमने इसकी चाय को ट्रक किया था। वो इतनी गहरी नींद सोया कि इसे मालूम ना हो कि कब कोई इसके घर बिना आवाज के दाखिल हुआ है और इसके फोन और घड़ियों के औकात को 2 घंटे आगे कर गया। हम इससे 1 बजे मिलने गए थे और जाते हुए इसकी केबल की तार कट गए थे। अगली रात दातन ने इसकी घड़ियां दुरुस्त कर दी थी। इंटरनेट अभी तक इसका खराब है। तभी इसने सिम कार्ड से अशर को कॉल मिलाई और वापसी पे चिताली ने इस स्टोर में मेरे भेजे रिपोर्टर को मुक्का मारा जो तवक्का के मुताबिक आपको थाने ले गया। थाने से बेहतरीन एलिबाई कोई नहीं होती, इसलिए फॉर द लास्ट टाइम अहमद निजाम साहब हमने कोई टाइम टर्नर इस्तेमाल नहीं किया था। आप लोगों से कुछ बैद भी नहीं है, आखिर आप वक्त के मुसाफिर रहे हैं। उन्होंने झुरझुरी लेकर सर झटका। वो ताले की वक्त के सफर वाली बातें यूं दोहराते थे जैसे इन पे यकीन हो, लेकिन ताले का ख्याल था वो अंदर से अभी तक इन पे यकीन नहीं कर पाए। कोई भी नहीं कर पाएगा। आपका शुक्रिया। तारामन निजाम के घर के करीब रुकी तो वो बोली। शोफर ने दरवाजा खोला तो वो बाहर से सरमा की धूप में लिपटी धनक अंदर उमड़ आई। अधेड़ उम्र वकील ने शाने उचकाकर अपना ब्रीफकेस संभालते हुए उठा। शोफर ने दरवाजा खोला तो उन्होंने नीचे उतरते हुए कहा, आपने मेरी फीस दे दी। दैट्स इट, मैंने ये सब फीस के लिए ही किया था। अली ने सोगवार मुस्कुराहट से देखा। उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। अगर आप ना होते तो मैं इस केस से ना निकल पाती, और अगर आपका दोस्त मेरी मदद ना करता तो मैं अपने पुराने जराइम के लिए माफीनामा कभी हासिल ना कर सकती। अहमद निजाम अपने घर के लॉन की तरफ पुष्ट किए खड़े थे। तालिया को ताज्जुब से देखा और बोले, कौन सा दोस्त? और कंधे उचका के मुड़ गए। तेज धूप इनके कब से आ रही थी, जहां घास पे दनक के सारे रंग बिख रहे थे। तालिया ने माथे पे छज्जा बना के उनको जाते देखा और मुस्कुराती, जानते हो मुझे इस आदमी की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? दरवाजा बंद हुआ तो वो एडम से बोली, क्या? जब इनको एहसास हुआ कि मैं स्याही का रास्ता छोड़ चुकी हूँ तो उन्होंने मेरे अंदर की अच्छाई को एक नहीं कई मौके दिए। इनके किसी कदम से कोई अच्छाई के रास्ते पे जाता हुआ शख्स बदल ना हो जाए, बस इस एक बात के लिए ये इतना अरसा मेरे साथ लगे रहे। ऐसे लोग कम मिलते हैं एडम, और आप जैसी भारी फीस भी कम लोग ही देते हैं। एडम हंस के बोला। तालिया मुस्कुरा के खिड़की से बाहर देखने लगी। सदियों की मुसाफत के बाद बिला आखिर वो आजाद थी। 2 दिन बाद सुबह की ताजगी इस खूबसूरत कॉलोनी की सड़क पे फैली थी। दोनों तरफ 2 रोया दरख्त थे जिन्होंने ठंडी सी छाया कर रखी थी। आसमान आज गहरा जामुनी था और सूरज को निकलने का रास्ता तक नहीं दे रहा था। एडम ने कार स्ट्रीट के किनारे पार्क की, फिर गहरी सांस लेकर साथ बैठी तालिया को देखा। वो हाथों में पकड़े प्रिंट शुदा कागज को देख रही थी। इसके झुके सर पे स्याह हैट था जिसमें सुर्ख फूल लगा था। आज इतवार है, फतेह घर पे होंगे, मैं बस इनसे ही साइन करवा के आती हूँ। दोस्ताना मशवरा दे रहा हूँ, ये ना करें। ताली ने चेहरा उठा के देखा। तुम्हें डर है कि वो साइन कर देंगे? मुझे डर है कि वो साइन नहीं करेंगे और फिर आप अपनी जिद बैठ जाएंगी और इनसे साइन करवा के दम लेंगी। जब आप जिद करती हैं तो इसे मनवा लेती हैं। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी चीज पे करें जो आपको खुशी ना दे। तालिया की आंखों में आज कोई नमी न थी, एक सोगवारिया थी, लेकिन एतमाद भी था। वो जैसे इस जज्बाती झटके से समझ चुकी थी जैसे इसने इस रिश्ते के तहलील हो जाने को कबूल कर लिया था। मेरा रंग स्याह है एडम, मैं तुम्हारी किताबों में लिखी कोई सफेद घोड़े वाली शहजादी नहीं हूँ। मैं अपनी स्याही समेत इनकी जिंदगी से दूर जाना चाहती हूँ, किसी और जजीरे पे, किसी नई दास्तान का हिस्सा बनना चाहती हूँ। कहा ना, मैं ये आजमा चुका हूँ। वो मुस्कुराया। नफी में सिलाए काम नहीं करता। दोनों घने दरख्तों के साथ तले कार में बैठे सामने फैली सड़क को देख रहे थे। मैं इनके साथ भी खुश नहीं रहूंगी, इनके बगैर रह के देख लूंगी। इतना अरसा इनके बगैर ही तो रह रही थी। तुम मेरा इंतजार करना। और मीशा वाला मामला, कहा ना मैं सिया हूँ, मुझे अब किसी दूसरे को बचाने में दिलचस्पी नहीं। जी तालिया, मीशा को वक्त है, हो सकता है वो वैसी ना हो जैसे आप उसको समझ रही। तालिया ने बस एक नजर उसे देखा और जख्म समझ पाई। तुम भी समझते हो कि तालिया पैरानॉइड है। अच्छा छोड़े। एडम ने घड़ी देखी और सामने स्ट्रीट में बनी फतेह की रिहाइश का कोठी का अंदर कितना वक्त लगेगा आपको? एक दस्तखत करवाने में कितना वक्त लग सकता है? शायद 1 लम्हा, शायद 557 बरस। एडम ने गहरी सांस लेकर कंधे उचकाए, सीट बेल्ट खोली और ड्राइविंग सीट पीछे करके टिक लगा ली। इसे तालिया की वापसी का इंतजार करना था। 10 मिनट बाद सिक्योरिटी के मराइल गुजार के बटलर इसे घर के अंदर ले गया। वो गर्दन सीधी रखे इसके हकम में चलती रही। दातु सरी स्टडी में है, बटलर ने रास्ते में बताया था। हाथ में पकड़े फोल्डर पे इसके हाथों की गिरफ्त नम हो गई। ये मराल मुश्किल नहीं था। स्टडी में जाना, खाते से कागज पे साइन लेना मुश्किल कुछ न था, बस तकलीफ दे था, और तकलीफ अभी से होना शुरू हो गई थी। राहदारी की दूसरी तरफ से मीशा आती दिखाई दे रही थी। तालिया रुक गई, बटलर भी रुक गया। मीशा एक लम्हे को हिचकिचाई, फिर करीब आई। इसके हाथ में 2 खाली शॉपिंग बैग्स थे। तालिया, एक बात कर सकती हूँ आपसे? उसी देख के साथ किसी को हुई। बटलर हाथ बांधे 3 कदम पीछे खड़ा हो गया। मैंने मुलाजमत से सुना है कि आप आ रही हैं तो यहाँ से जाने का फैसला कर लिया।
मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ, मेरी वजह से आप लोगों की जिंदगी में झगड़ा हो ये मैं नहीं चाहती। तालिया खामोशी से देख गई, वो इसी अंदाज में कही जा रही थी। आप मुझे गलत समझती हैं, लेकिन बेफिक्र रहिए, मैं किसी गलत इरादे से इस घर में नहीं आई थी। दातो सरी मेरे लिए काबिल एहतराम है, उन्होंने मुझे इस घर में जगह दी, बुरे वक्त में साथ दिया, ये बहुत है। मैं एक सिंगल मदर हूँ चेतालिया, मैं अपने एक्स हस्बैंड की हर हरासमेंट का शिकार हूँ। मैं मर्दों की दुनिया में काम करने वाली औरत हूँ, मुझे हर जगह गलत समझा जाएगा जानती हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में पहले बहुत मसले हैं, मैं इनमें मजीद इजाफा नहीं चाहती। वो तकी तकी लग रही थी, दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। आप कहाँ जाएंगी? बेताली ने कदर ठहरे हुए अंदाज में पूछा। अपनी फ्रेंड के घर पे। इसने गहरी सांस ली और हिचकिचाते वो बोली, मैं जानती हूँ आप ये पेपर्स क्यों लाई हैं, बच्चों ने जिक्र किया था, मेरा मामला नहीं है, इसलिए मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं भी एक औरत हूँ, आपका चेहरा पढ़ सकती हूँ, आप डिस्टर्ब हैं। ये करके कागज की तरफ इशारा किया। आप खुश नहीं रहेंगी, इसलिए ऐसा कुछ मत करें जो आपको तकलीफ दे, अपने फैसले पर गौर करें, इस घर में आपके लिए जगह है अगर आप चाहें। नरमी से कहा और आगे बढ़ गई। ताली ने कुछ नहीं कहा, बस बटलर को इशारा किया, वो इसे स्टडी की सिम ले गया। जब बटलर ने स्टडी का दरवाजा खोला तो सामने फातिह अपनी कुर्सी पर बैठा था। दरवाजा पूरा खुलता गया तो जहाँ किताबों के रैक्स नुमाया हुए थे, ताली ने देखा सिकंदर और जुलियाना वहीं बैठे थे। तालिया को देख के दोनों उठ खड़े हुए। हम जाएं डैड? हाँ। नहीं। दोनों एक साथ बोले। फातिह ने सवाली नजरों से तालिया को देखा जो इन्हें जाने से मना कर रही थी। इन दोनों ने भी इख्तियार बाग को देखा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। वो आ गया और फोल्डर इनकी मेज पे रखा। फातिह ने एक नजर फोल्डर को देखा और दूसरी संजीदा नजर उस पर डाली। आप ये साइन कर दें तो मैं जाऊं। जुलियाना ने सिकंदर को देखा। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। सिकंदर ने इशारा किया। खैर है, खड़ी रहो। इस स्टूडियो में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। अपनी कुर्सी पे बैठे फातिह ने फोल्डर उठा के खोला। सपाट चेहरे से इस पे लिखी इबारत पड़ी। तालिया सामने खड़ी थी, इसका चेहरा भी सपाट था। फातिह ने चेहरा उठा के जख्मी नजरों से देखा। मैं साइन करके तुम्हें भिजवा दूंगा। उसने फोल्डर बंद कर दिया। तालिया का दिल अंदर अंदर कट के रह गया। वो कहना चाहती थी कि वो इसे अभी इसी वक्त का साइन करके दे डाले, लेकिन वो ये नहीं कहना चाहती थी। इसने तहदी अंदाज में सर को खम दिया। श्योर, मैं इंतजार करूंगी। और वो मुड़ना चाहती थी और यहाँ से चले जाना चाहती थी। वो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन मालूम नहीं क्यों वो चंद लम्हे मजीद खड़ी रही। वो अपनी कुर्सी पे बैठा उसे देख रहा था। इसकी नजरों में इस्तेफाम था, कुछ और इसके अंदाज में गिला था। वेल, अली ने संजीदा चेहरा सिकंदर और जुलियाना की तरफ मोड़ा जो इसे इन्हीं अजनबी नजरों से देख रहे थे। आपको अब तक यकीन आ जाना चाहिए कि मैंने असरा का कत्ल नहीं किया था, ना ही मैं कोई गोल्ड डिगर हूँ। मेरे अगले हफ्ते फ्लाइट है और मैं यहाँ से जा रही हूँ। हमारे रास्ते अब एक दूसरे को नहीं काटेंगे। उम्मीद है मैंने अपने ऊपर लगे तमाम इल्जाम धो डाले हैं। ऊपर असली मुड़ी तो जुलियाना बोली, और जो इल्जाम आपने दूसरों पे लगाए हैं इनका क्या? अलिया महजब से वापस पलटी। फातिह ने उकता के हाथ उठाया। इस किस्से को अब खत्म कर दो जूली। क्यों? यानी माजरत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने मेरी टीचर को फ्रॉड साबित करने की कोशिश की। वो तड़क के बोली। अली ने ताज्जुब से उसे देखा। मैंने इस औरत को कुछ साबित करने की कोशिश नहीं की। क्या आपने नहीं कहा था कि वो फ्रॉड है? सिर्फ कहा था, साबित करने की कोशिश नहीं की। तब करती जब आप लोग मेरी कही बात पे एतबार करते हैं, लेकिन चूंकि आप लोग इसके साथ खुश हैं तो मैं इस मामले में दखल नहीं देना चाहती। वो हेडसेट पे ठीक से जमाती दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जुलियाना ने इस्तेज़ाई अंदाज में सर झटका। अभी इसका हाथ डोर नॉब पे था जब फातिह ने से पुकारा, 1 मिनट। वो पीछे नहीं मुड़ना चाहती थी। पीछे मुड़ने वाले नमक के मुजस्मे बन जाते हैं और मुजस्मों को आंसू घोल के बहा देते हैं। इसे बस यहाँ से निकलना था। यानी तुम मीशा को फ्रॉड साबित कर सकती हो? वो ताज्जुब से बोला। ताली ने गहरी सांस ली और वापस पलटी। जाहिर फातिह, मेरी एक उम्र गुजरी है असल और नकल पेंटिंग का फर्क मालूम करने में। अच्छा, कैसे? फातिह ने पीछे टेक लगा कि दिलचस्पी से उसे देखा। थोड़ी देर के लिए जैसे सारे अख्तलाफात भूल गया था या भूलना चाहता था। प्लीज चितालिया, जुलियाना कोफ से बोली, मेरी टीचर को फोटोग्राफर्स नकल ना कहें। ताली ने अफसोस से जुलियाना को देखा और गर्दन दाएं बाएं हिलाई। मैं असली पेंटिंग हूँ, वो नकली है। डैड, आप इस खातून को क्यों सुन रहे हैं? मिसेस मीशा की सिक्योरिटी क्लियरेंस। मगर फातिह ने सिकंदर को हाथ उठा के खामोश करवा दिया। मैं सुन रहा हूँ। तालिया को बात जारी रखने का इशारा किया। तालिया हल्का सा मुस्कुराई। उसको बुला के पूछे कि वो कहाँ जा रही है। वो रुकी। वो सीधी कहाँ जा रही है? वो इसके जवाब में अपना जवाब ढूंढे। फातिह ने इंटरकॉम उठाया और मीशा को बुलाने को कहा। इसकी निगाहें अभी तक ताली पे जमी थी। चंद लम्हे पे दरवाजे पे दस्तक हुई। मीशा अंदर दाखिल हुई। इसका हैंड बैग कंधे पे था और इसने सफेद हैट पहन रखा था। एक नजर सबके मुंतजिर चेहरे को देखा। तालिया पीछे बुक शेल्फ से टिक लगाए खड़ी अभी तक फातिह को देख रही थी। मीशा, आपकी तैयारी मुकम्मल हो गई? मैंने सुना है आप जा रही हैं। फातिह ने नॉर्मल अंदाज में पूछा। जवाबन वो सादगी से मुस्कुराती। जी दातुसरी, मैं बस निकलने ही वाली हूँ। आप कहाँ जाएंगी? अपनी फ्रेंड की तरफ? सीधी वहीं जाएंगी? मेरा मतलब है कहीं और तो नहीं जाएंगी? जी नहीं। मीशा की गहरी सांस अंदर खींची। मेरा एक्स हस्बैंड अभी तक मफरूर है, इसलिए बेफिक्र है। मैं सीधी अपनी फ्रेंड की तरफ जाऊंगी और वहीं रहूंगी।
अली अभी तक फातिह को देख रही थी। जवाब पे मुस्कुराई और अब्रू उठाया। क्या मैंने साबित नहीं कर दिया उसकी नकली पेंटिंग का फर्क? मीशा ने नासमझी से उसे देखा। फातिह को ताली ने अपना बैग उठाया और हेड को 2 उंगलियों से माथे पे मजीद झुकाते मुस्कुरा के बाहर निकल गई। वो अब इससे ज्यादा यही नहीं ठहर सकती थी। मैं जाऊं दातू श्री? मीशा ने इजाजत चाहिए। मीशा, आपको मालूम है असली और नकली पेंटिंग का फर्क कैसे मालूम किया जाता है? फातिह ने इस पे निगाहें मरकूज किए कहा। वो अपनी कुर्सी पे बैठा था और मीशा दरवाजे की चौखट पे खड़ी थी, इस एक चीज से जो असली पेंटिंग में नहीं थी और इसे नकली पेंटिंग से अपनी पेंटिंग में डाल दिया था। आपकी और ताली की कहानी में एक चीज का फर्क है। मैं समझी नहीं। इसने चंबे से फातिह को देखा। आपकी एक बेटी भी है, वो बिल्कुल अजनबी टोन में कहते हुए बैठा। और एक माँ की पहली इंस्टिंक्ट अपने बच्चे की हिफाजत होती है। आपने कहा था कि आपकी दोस्त का फार्म हाउस शहर से दूर है, लेकिन आप सीधी वहां जा रही हैं। एमी को स्कूल से पिक किए बगैर वो दरवाजे की तरफ आया। मीशा का हाथ डोर नॉब पे था। फातिह ने नरमी से उसका हाथ वहां से हटाया और दरवाजा बंद किया। सिकंदर, बाहर जाओ और सिक्योरिटी टीम को बुलाओ। इनसे कहो बाहर इंतजार करें। और तुम मीशा, तुम यहाँ बैठो और मुझे बताओ कि तुम कौन हो? इसने संजीदगी से सोफे की तरफ इशारा किया। मीशा चंद में बिल्कुल साकित सी उसको दिखती, फिर एकदम वो हंस पड़ी। 2 साल लगे आपको मुझे पकड़ने में? नॉट बैड। इसने मुस्कुरा के हाथ उतारा और आराम से सामने रखे सोफे की तरफ बढ़ गई। प्लीज पे बैठी, टांग पे टांग जमाई और कोनी सोफे के हत्थे पे रख लिया। दिलचस्पी से उसने कहा, बिल्कुल फिर ठीक कहता था। ताली आपकी जिंदगी में वापस आ गई और सिर्फ वही मुझे पकड़ सकती है। मुझे पहले निकल जाना चाहिए था, लेकिन इट्स ओके। मुस्कुरा के शाने उचकाए। नो रिग्रेट्स। स्टडी में शशदर सा सन्नाटा छा गया। सिकंदर तो हक्का बक्का था ही, लेकिन जुलियाना इसकी रंगत फक हो गई थी। मैम, आप मजाक, प्लीज शट अप जुलियाना। मीशा ने फातिह को देखते हुए दया हाथ जला के इशारा किया। तुम बहुत अनोइंग और बहुत स्पॉइल्ड हो। मीशा का लहजा अब पोश महजिब लहजा नहीं रहा था जैसे सुनने का वो आती था, बल्कि केएल की तारीख गलियों में स्लैंग बोलने वाले नौजवानों जैसा हो गया था। फातिह ने सिकंदर को इशारा किया। वो तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गया। फातिह ने मेज पे रखा फोन उठाया और सख्ती से बोला, मिसेस मीशा अंदर मेरे साथ है। सिक्योरिटी से कह दो वो बाहर नहीं जाएंगी। एक और सिक्योरिटी टीम को मेरी स्टडी के बाहर तैनात करो। मैं मिसेस मीशा से चंद बातें कह लूं, फिर तुम उनको ले जा सकते हो। फोन रख के जुलियाना को देखा, जो पलके तक नहीं झपक रही पा रही थी। आंसू इसकी आंखों में तैर रहे थे। जूली तुम जाओ। हाँ जूली, प्लीज तुम जाओ। दातो श्री वैसे भी मुझे 10 मिनट से ज्यादा यहाँ नहीं रोक सकेंगे। वो जो इत्मीनान से बैठी थी इसी अंदाज में बोली, इसका एतमाद, इसकी बेखौफी। फातिह ने जुलियाना को वहां से भेजा और खुद कुर्सी खींच के सामने बैठा। तो तुम्हें जुल्कफली ने भेजा है? ऑफ कोर्स मुझे जुल्कफली ने भेजा है। कोई और मुझे 2 साल के लिए इतना मुआवजा दे भी नहीं सकता। 2 साल एक तवील अरसा है। तुम सिर्फ मुआवजे के लिए नहीं आ रही। वो गौर से इसकी आंखों में छुपी मुस्कुराहट पड़ रहा था। फातिह का चेहरा ऐसा करते हुए बिल्कुल सपाट था, अंदर उबलते तूफानों को अंदर दबाए वो बजाय बिल्कुल पुरसुकून था। ये एक बेहतरीन कवर था। शहर के उम्र तक रसाई, इस फ्रेंड्स के घर में नकब लगाना, ताकतवर लोगों के अहम राज उनके बच्चों की जबानी सुनना। टीचर और डॉक्टर को लोग सब बता देते हैं और इन्फॉर्मेशन की कीमत होती है। तुम्हारे आईडी कार्ड, पासपोर्ट, किसी भी चीज पे कोई रेड फ्लैग नहीं था, क्योंकि मेरे पास ऊंचे ओहदे वाले दोस्त हैं। दातो श्री, क्योंकि मैं अपने काम में अच्छी हूँ। तालिया मुराद से बहुत तेज, शायद बेस्ट। वो टांग पे टांग रखे पाँव जला रही थी। और तुमने मेरी बेटी को इस्तेमाल किया, ना सिर्फ आपकी बेटी को बल्कि इसकी साइकोलॉजिस्ट को, जिसके पास इसकी थेरेपी हो रही थी। इसके केस फाइल से ये मालूम करना कि आपको होम ट्यूटर की तलाश है या जुलियाना को किस तरह की टीचर चाहिए बहुत आसान था। मैं उम्मीदवारों की कतार में दाखिल हो गई। आपने मुझे खुद चुना, ऐसे जैसे ये आपका अपना आइडिया हो। स्टडी में वो दोनों थे और खामोश किताबें थी। वो किसी सांप की तरह धीमी आवाज में बोल रही थी। नजर फातिह की आंखों से हटाए बगैर इसके चेहरे पे एक अजीब तमस्कर था जिसको कोई नाम नहीं दे पा रहा था। और एमी, वो तुम्हारी बेटी नहीं। हाँ, वो भी जुल्कफली की एक स्टूडेंट है, लेकिन इसकी फिक्र मत करें। उसको स्कूल से किसी ने पिक कर लिया होगा। वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। इसने कंधे उचकाए। और कुछ? तो हमसे ताली के बारे में हमेशा अच्छी बातें किया करती थी। डोंट यू अंडरस्टैंड दातो श्री? वो एक रोल था मीशा ताज, एक अच्छी टीचर, कौन आर्टिस्ट। पूरे आर्टिस्ट ऐसे ही होते हैं। वो जोर से कहने लगी, वो एक किरदार तख्लीक करते हैं और उसे आखिर तक निभाते हैं। जब तक ताली ने तुम पे शक का इजहार किया तो तुम भागी क्यों नहीं? सोचते हुए उसे देख रहे थे। क्योंकि मुझे जुल्कफली ने ताली की जगह लेने भेजा था यार। मैंने आखिरी हद तक कोशिश करनी थी, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि ये मुमकिन नहीं है। मैं भागी रही थी, लेकिन फिर आपने मुझे पकड़ लिया। सिंपल। इस निशाने उचकाए। इसके अंदाज में कुछ अजीब सा था। वो बिल्कुल पुरसुकून और पुरअतमाद थी। कितने अफसोस की बात है, मैंने और मेरी बेटी ने तुम पे एतमाद किया, तुम्हें घर में जगह दी और तुम सारा वक्त हमारे साथ झूठ बोलती आई। मुझे तुम्हारे लिए अफसोस है मीशा। तुम अपनी जिंदगी में झूठे रिश्तों के सिवा कुछ नहीं पाओगी। और आप जैसे सच बोलने वालों की जिंदगी में क्या है? ऊंचा महल, खाली दीवारें, अपनी कुर्सी को बचाने की फिक्र। वो मुस्कुरा के उठी। मैं जाऊं? और तुम्हें क्यों लगा कि मैं तुम्हें जेल भेजने के बजाय यहाँ से जाने दूंगा? ओह, आप मुझे अभी बहुत इज्जत से रुखसत करने वाले हैं दातो श्री? वो मुस्कुरा के बोली, क्योंकि मेरे पास एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। इंटरेस्टिंग। क्या है वो पॉलिसी?
मैं जुल्कफली के इस काम के लिए इसलिए राजी हुई थी क्योंकि उसने मुझे बच निकलने का रास्ता दिखाया था। वो सोफे में आगे को हुई और उसकी तरफ झुकी। मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी है तालिया मुराद, फातिमा ने चुपती नजरों से दिखा मुस्कुरा के कह रही थी। तालिया ने बहुत से जुराइम जुल्कफली के साथ मिलकर किए हैं, इसके पास इनके सबूत है। वो इन जुराइम के लिए माफीनामा हासिल कर चुकी है। हाँ तो मैं कब कह रही हूँ कि मैं इन सबूतों को पुलिस के हवाले कर दूंगी। नीशा ने दाएं से बाएं गर्दन उठाई। अगर आज मैं सही सलामत यहाँ से ना निकली तो जुल्कफली इन सारी चीजों को मीडिया पे दे देगा। इंटरनेट की दुनिया क्रेजी होती है तो सिर्फ वहाँ परसेप्शन ही सब कुछ होता है। तालिया मुराद के जराइम का पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। अभी तो बहुत कम लोग जानते हैं कि तालिया आज एक कौन आर्टिस्ट थी। इसका माफीनामा भी सुफिया रहमान ने सील करवा दिया था। कोई इसे खोल भी नहीं सकता, लेकिन अगर मेरी जबान खुल गई तो इसकी आवाज हल्की हो गई। वो बिना पलक झपके फतेह की आंखों में झांक रही थी। तो सारा मुल्क जान लेगा, सारा मुल्क ये भी पूछेगा कि सूफिया रहमान ने ऐसे एक मुजरिम को माफ कर दिया। तालिया मुराद अभी अभी एक इल्जाम से निकली है, वो अगली सुबह का सूरज तुलू होने से पहले ऐसे कई स्कैंडल्स में घिर जाएगी। जिन लोगों की चीजें इसने चुराई थी या उनको लूटा था वो बदला लेने निकल आएंगे। इस दफा तालिया पे लगने वाले इल्जाम सच्चे होंगे। अब आप बताएं दातुसरी, आप मुझे यहाँ रोकेंगे या इज्जत से जाने देंगे? ये वो हमेशा नहीं थी जिसे वो इतने अरसे से जानता था। ये चमकती आंखों और अमियाना लहजे में बोलने वाली कोई और औरत थी। फतेह खामोशी से उसे देख रहा था। इसकी आंखें मीशा की आंखों पे जमी थी। घड़ी की सुइयां आपका वक्त कम कर रही हैं। मुझे 11 बजे से पहले इस घर से बाहर होना चाहिए, वरना तालिया के साथ बहुत बुरा होगा। क्या आप इसकी इज्जत से जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश पूरी नहीं होने देंगे? कौन फतेह ठंडी सांस खींच के, और मीशा को मालूम था वो जीत चुकी थी। तुम यहाँ से खाली हाथ जाओगी, तुम अपना सामान अपनी चीज सब यहाँ छोड़ के जाओगी और दोबारा मेरे घर या मेरे बच्चों के करीब भी नहीं आओगे और तुम कभी भी तालिया को हर्ट करने की कोशिश नहीं करोगी। एंड वी हैव अ डील। मीशा ने मुस्कुरा के दोनों हाथ उठाए। कुछ देर बाद मीशा था जिसके घर के गेट से बाहर निकली थी। जुबैना अपने कमरे में बंद हो गई थी और सिकंदर वो स्टडी के कोने से दूसरे के चक्कर काटते हुए गुस्से से कह रहा था, डैड वो औरत वो फ्रॉड थी, आपको कैसे जाने दे सकते थे उसको? वो बार बार पेशानी छूता था, रंगत सुर्ख पड़ रही थी, हम इसको रोक नहीं सकते थे। वो संजीदगी से बोला। इसके चेहरे पे ढेरों मलर था। वो आपको नुकसान पहुंचाएगी डैड, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से जाके भी कुछ ऐसा जरूर करेगी जिससे आपको नुकसान हो। फतेह सुगवारी से मुस्कुरा खड़े होते हुए बोला, तुम्हें लगता है मैं ये बात नहीं जानता? और दरवाजे से बाहर निकल गया। सिकंदर बेबसी से उसे देखते रह गया। वो अब पूरे घर में जुलियाना को आवाज दे रहा था। जुलियाना को इस सदमे से निकलने में एक लंबा अरसा लगना था। वो जानता था। वो फोल्डर उसकी स्टडी टेबल पे रखा रह गया। क्या उन्होंने दस्तखत किए? तालिया जब वापस घर में आई तो एडम ने छूटते ही पूछा, नहीं, लेकिन उनको हमेशा की हकीकत जल्द मालूम होने वाली है। वो कुछ मजमहल सी लग रही थी। सारी तफसीलात सुन के एडम ने बेख्तियार माथे को छुआ। यानी साबित हुआ तालिया मुराद के अंदाजे गलत नहीं होते। फिर से इसने झुंझुरी, आप चली क्यों आई? वहां रह के मीशा के तासुरात क्यों नहीं देखे? मैं फातिह को अफसरदा नहीं देखना चाहती थी। एडम वो पुरमलाल लग रही थी। एडम ने कार सड़क पर डाल दी और अब ड्राइव करते हुए गाय बगाए उसको देख रहा था। ये परेशान सी खिड़की की तरफ से रमोड़े हुई थी। एक बात मुझे समझ नहीं आई। थोड़ी देर बाद तालिया ने अपने खर्चे को जबान दी। मीशा वहां रुकी क्यों रही? जब मैंने इससे टेढ़े सवाल पूछे थे इस रोज डिनर पे तो इसका कवर खराब हो चुका था। इसे वहां से भाग जाना चाहिए था। इसने इतने दिन इंतजार क्यों किया? क्योंकि वॉन फतेह इस पे अभी तक भरोसा किए हुए थे। नहीं एडम, वो औरत उनको नुकसान पहुंचाएगी तो आपको फिक्र क्यों है? आप तो वैसे भी उनको छोड़ के जा रही हैं। अब आप यहाँ नहीं होंगी तो भले कोई भी उनको नुकसान पहुंचाए, आपको क्या? ताली के माथे पे चिकने पड़ी। इसने नागवारी से ड्राइव करते हुए एडम को देखा। मैंने सिर्फ दाया हाथ कटवाने की बात की थी, जबान की भी। एडम ने अफसोस से उसे देख के सर झटका। दुनिया इधर से उधर हो गई, लेकिन शहजादी ताशा की रौनक नहीं गई, जाएगी भी नहीं। वो खिड़की से बाहर देखने लगी। जो भी था वो अब इस बारे में नहीं सोचेगी। वो हर एक को बचाने की फिक्र अब नहीं करेगी। बस मलाका शहर में सल्तनत महल अब एक म्यूजियम बन चुका था। ये वो सल्तनत महल नहीं था जिसमें एक जमाने में शहजादी ताशा दाखिल होती। मुराद राजा की मौत के चंद साल बाद पुर्तगाली मलाका पे काबिज हुए और इस महल को जला के राख कर दिया। सदियों बाद पुराने नक्शे दरियाफ्त हुए और इन किताबों की मदद से हूबहू वैसा ही महल तामीर किया गया। लकड़ी का ये खूबसूरत महल गो कि वही था, लेकिन ये वो नहीं था। वो ऐसे बदल चुका था जैसे इंसान बदल जाते हैं। ढांचा वही रहता है, नक्श वही होते हैं, लेकिन इनका दिल बदल जाता है। पुराना जल के राख हो जाता है और जो नया दिल इसकी जगह लेता है, इसमें गोश्त कम और पत्थर ज्यादा होता है। इस महल को देखने सयाह दिन रात दूर दूर से आते थे। इंस्टा दी फोटोज खिंचवाते।
वहाँ दर्ज तहरीरें पढ़ते, हंसते बोलते खाते पीते वहां से रुखसत हो जाते। कुछ अलबत्ता पिछली तरफ बने अहाते में भी जाते थे जहाँ गुज़श्ता सलातीन की कब्रें मौजूद थी। पथरीली कतपों वाली ये कब्रें पुर्तगालियों की आंख से महफूज रह गई थी। वहां 3-4 कतारें बनी थी और अपने वक्त की ताकतवर तरीन हुक्मरान एक ही सफ में अब्दी नींद सो रहे थे। इन कब्रों के वस्ती कतार में तालिया मुराद मौजूद थी। सर पे सियाह स्कार्फ ओढ़े हो दुआ के अंदाज में हाथ बाहम मिला एक कब्र के सामने खड़ी थी। इसकी गुलाबी आंखें कुत्ते पे जमी थी। सुल्तान मुराद राजा। आंखों से आंसू गिरा और गाल पे बह गया। इसने अपने लंबे से कोट की जेब में हाथ डाला और वो कदीम तरस का लिफाफा निकाला। लिफाफे के अंदर से खत निकाला और तहरीर फिर से पढ़ने लगी। इसका बाप मर चुका था। इसकी कब्र सामने थी लेकिन किसी और दुनिया में इसका बाप जिंदा था और वो इसका इंतजार कर रहा था। इसने भीगी आंखें बंद की। गरम आंसू गाल पर लुढ़कने लगे। इसने कब्र पे हाथ फेरा। मेरे आपसे सारे गिले दूर हो चुके हैं पापा, लेकिन मैं अब वापस नहीं जा सकती क्योंकि मैंने आपको हर सूरत में मौत के हाथों खो देना है। वो मेरी दुनिया नहीं है, ये मेरी दुनिया है। ताली ने जिंदगी में बहुत से गलत फैसले किए हैं, अब भी शायद कर रही है, लेकिन पापा मैं अपनी दुनिया नहीं छोड़ सकती। मेरी दुआ है कि आप अपनी मौत से पहले मुझे माफ कर दें। मैंने आपका दिल दुखाया था लेकिन मैं खुद भी दुखी हूँ। वो सिरे लबड़ पा रही थी। आंसू थोड़ी सी नीचे गर्दन पे टपक रहे थे। इस हाथे के बाहर एडम और दातन मुंतजर से खड़े से देख रहे थे। तालिया की उनकी जाने कुछ थी। दूर से वो बस सर झुकाए खड़ी नजर आ रही थी। वो दोनों एक दरख्त के साथ खड़े इसके मुंतजर थे। दोनों खामोश थे, दोनों उदास थे। फिर दातन खिनकारी। तालिया वापस जाने का तो नहीं सोचेगी, ये नामुमकिन है दातन। वो अपने पापा के खत के बाद से गिल्टी जरूर है लेकिन बेवकूफ नहीं है। दोनों के दरमियान खामोशी का वक्फा आ गया। फिर दातन गोया हुई। वो बातें को छोड़ रही है, तुम जानते हो फिर भी तुमने इससे अब तक बात क्यों नहीं की? एडम ने सन ग्लासेस उतारे और मुस्कुरा के दातन को देखा। इसकी आंखों में जमाने भर की उदासी थी। पहले मुझे डर था कि वो मेरा इंतखाब नहीं करेंगी, लेकिन अब बात इंतखाब से आगे निकल चुकी है। ये जो दिल होता है ना, इसमें एक वक्त में एक शख्स समा सकता है और जब तक वो ना निकले किसी दूसरे को इसमें दाखिल होने की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। क्या तुम इसके दिल से फाते ये निकलने का इंतजार करोगे? नहीं दातन, जिसके महबूब के दिल में कोई और हो और फिर भी उसको पा लेने के लिए जतन करता रहे हो, ऐसा शख्स हमेशा मगमूम रहता है। महबूब के लिए दूध की नहर खोदना या जहर खाना आसान होता है, जानती हो मुश्किल क्या होता है? मैडम इस तरफ घुमा। वो सरमा की धूप में खड़ा था और दातन छाव में। दो परसाए में 3 कदमों का फासला था। दातन ने माथे पे हाथ का छज्जा बना के उसे देखा जिसके इर्द गिर्द से रोशनी की तेज शुआएं निकल रही थी। क्या मुश्किल होता है इसकी मोहब्बत से मूव ऑन करना, आगे बढ़ जाना। किसी को अनलव नहीं किया जा सकता, मैं मानता हूँ, लेकिन अपने दिल को इसकी ख्वाहिश से खाली किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता, मगर मैं करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब दो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो किसी तीसरे को इनके दरमियान की लकीर नहीं बनना चाहिए। एडम बिन मोहम्मद में इतनी सेल्फ एस्टीम है कि वो ठुकराए जाने का इंतजार किए बगैर ही इससे कौन से अलग हो जाए। मैं इनसे कुछ नहीं कहूंगा दातन, क्योंकि अब मैं खुद से भी मोहब्बत करता हूँ और अगर मैं इनके दरमियान में आया तो एडम को एडम कभी माफ नहीं कर सकेगा। सादा लिबास स्याह लिबास वाली तालिया अब कब्रों की कतार से निकल के इनकी तरफ आ रही थी। वो दोनों खामोश हो गए। वो खत तय करते हुए आंखें रगड़ती अहाते से बाहर निकली। इनके पास पहुंचने तक इसकी आंखें खुश्क हो चुकी थी। वो खत को पर्स में डालने लगी कि दातन ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। क्या मैं इसका लिफाफा रख सकती हूँ? ये एंटीक है, मेरे काम आएगा। नहीं, अली ने सख्ती से कहा और खत अंदर पर्स में डाल दिया। ये मेरे पास मेरे पापा की आखिरी निशानी है। रतन ने खिफ़त से कंधे उचकाए। ओके ओके सॉरी। फिर घड़ी देखी, कहीं चल के खाना खाते हैं, मुझे भूख नहीं है। वो मखमूम से अंदाज में बोली। इसकी नाक अभी तक सुर पड़ रही थी। तालिया, हम तीनों आखिरी दफा मला के साथ आ रहे हैं, तुम अगले हफ्ते हमारा मुल्क छोड़ के चली जाओगी। हम फिर कब आ सकेंगे भला? कम से कम आज का दिन ये उदास शक्ल न बनाओ और अच्छी यादें लेकर जाओ। रतन का दिल खुल्की से बोली तो तालिया जबरन उसको इस बात में सर हिलाया। वो भी एडम की तरह धूप में खड़ी थी। और ये तय है कि आप अपना इरादा नहीं बदलेंगे? एडम ने बगौर उसे देखा। नहीं, मैं मजीद इस मुल्क में नहीं रहना चाहती, मुझे यहाँ से दूर जाना है। क्या कहा ना, ये काम नहीं करता। एडम ने अब रोज का के कहा और आगे बढ़ गया। वो गहरी सांस लेके इसके साथ हुई। दादा ने कदम पीछे थी। आज के दिन तुम अपना सारा वक्त मुझे और एडम को दोगी तालिया। दाता साथ चलते हुए कह रही थी, आज के दिन तुम अपनी आजादी को एंजॉय करोगी। अगर फातेह से दूर जाने का फैसला किया ही है तो इसको बर्दाश्त भी करो। आज हम फातेह के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। श्योर। कौन फातेह? शहजादी ने शाने उचका के कहा और गीली सांस नाक से अंदर खींची। दाता ने मुस्कुरा दी। एडम ने अलबत्ता अपनी मुस्कुराहट छुपा ली थी। चलते चलते तालिया ने चेहरा उठा के आसमान को देखा जहाँ आज एक रोशन दिन निकला था। फिर इसने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। हाँ, आज के दिन वो फातेह की फिक्र नहीं करेगी, ना इसके बारे में सोचेगी। आज का दिन वो अपने ही रंग में रहेगी। खुशियां है और इसे किसी दूसरे को बचाने की फिक्र नहीं करनी चाहिए। वो तीनों एक रेस्टोरेंट में दाखिल हुए और एक मेज के गिर्द
रखी 3 कुर्सियां एक साथ खींची, फिर कुर्सियां खींचते हाथ तीनों के एक साथ रुके। गर्दनें ऊपर टीवी स्क्रीन की तरफ उठी, आंखें वही साकित होगी जैसे रेस्टोरेंट में दूसरे लोगों की हो चुकी थी। स्क्रीन पे वन फतेह का चेहरा दिखाई दे रहा था और साथ चलती खबर सबको हक्का बक्का कर गई थी। प्रधानमंत्री एक नए मसले का शिकार। स्क्रीन पर नजर आती न्यूज कास्टर सपाट चेहरे रिपोर्ट मुस्कुराहट के साथ बता रही थी प्रधानमंत्री को वन फतेह बिन नाजर की 15,672 ईमेल्स इंटरनेट पे जारी कर दी गई हैं। नाजरीन की मालूमात के लिए बता दें चलें कि पॉलिटिकल्स एक ऐसा बैन अवी पोर्टल है जहां गुज़श्ता कई बरस से सियासतदान, खुफिया एजेंसी और सेलिब्रिटीज के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स और प्राइवेट वीडियोस नशर की जाती हैं। ये मवाद इस वेबसाइट को या हैकिंग के जरिए मिलता है या विसल ब्लोअर्स के जरिए। मगर दिलचस्प बात यह है कि वन फतेह की जो ईमेल्स लीक की गई हैं वो जाती नौयत की नहीं है, वो सरकारी नौयत की हैं। इनमें सियासी दावत नामों से लेकर फौजी अहदेदारों के साथ की जाने वाली बातें भी शामिल हैं। हमारे तज्जिया कारान ईमेल्स का जायजा ले रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि इन ईमेल्स में मौजूद मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने वाला कुछ नहीं। ये वन फतेह के पहले दौर हुकूमत से मुतालिक है, इसमें लुटून के अमूर की बातें की गई हैं, लेकिन उसका ने वक्फा दिया अगर ये नुकसान पहुंचाएंगी तो सिर्फ एक शख्स को, वन फतेह को। एडम भी की नीचे स्क्रीन को देख के बुलाया। दाता ने ताज्जुब से देखा, क्यों ये जाती ईमेल सही हैं और वो कह रहे हैं ना कि इनमें कोई बहुत खुफिया या नाजुक बातें नहीं की गई और ये इनके पहले दौर हुकूमत की हैं, तो इनको नुकसान क्यों पहुंचाएंगी। मसला ये नहीं है कि इन ईमेल्स में क्या है, न्यूज कास्टर की आवाज में कह रही थी। दाता ने अपना जवाब इसकी रिपोर्ट में ढूंढने लगी। मसला यह है कि प्रधानमंत्री ने ये ईमेल अपने इस ईमेल एड्रेस से भेजी हैं जो प्राइवेट सर्वर पे है। ये प्राइवेट सर्वर पर प्रधानमंत्री की अपनी वेबसाइट का है जिसे वो कई बरसों से इस्तेमाल कर रहे हैं। ओह नो, फतेह ने पीएम बनने के बाद ईमेल सर्वर तब्दील नहीं किया। तालिया शौक से स्क्रीन को देख रही थी। प्रधानमंत्री गुज़श्ता कई सालों से प्राइवेट सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गफलत है। इस अहम ओहदे पर होने वाले अहदेदार को प्राइवेट सर्वर नहीं बल्कि गवर्नमेंट सर्वर इस्तेमाल करना चाहिए था। गवर्नमेंट के सर्वर भी हैक हो सकते हैं, दाता ने बेचैनी से कहा। पर वो फतेह साहब की गलती ना होती। ये है, अडम ने अफसोस से स्क्रीन को देखा। जब तक कुछ गलत नहीं हुआ होता इंसान एहतियात नहीं करता। पहले कब किसी का प्राइवेट सर्वर हैक हुआ है जो वो ऐसा सोचते। ये मेल हैक नहीं हुई। ताली ने जिहान की तरफ मुड़ा, इसकी आंखें गुलाबी हो रही थी, वो शदीद डिस्टर्ब नजर आ रही थी। इनका प्राइवेट सर्वर बहुत सिक्योर था, इसको हैक करना आसान नहीं था, इसलिए जुल्कफली ने इनके घर में मीशा को दाखिल करवाया था ताकि किसी तरह से इनके स्टडी रूम तक रसाई मिल जाए। इतने बरस मीशा इनकी कमजोरी ढूंढती रही और फिर एक दिन इसे अंदाजा हो गया कि वो प्राइवेट सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए वो इनके घर रहने आई और रात को इनकी स्टडी में गई और इनके लैपटॉप के जरिए ये मेल्स डाउनलोड की। इसने कब से आंखें बंद की। मैं गलत समझी थी। मीशा वन फतेह की जिंदगी में इनकी बीवी बनने नहीं आई थी, न इसे मेरी जगह ली थी। वो सिर्फ इनको सियासी नुकसान पहुंचाने आई थी और अब वन फतेह की कुर्सी खतरे में है। दाता ने अफसोस से देखा। एडम भी उसे देख रहा था। कितनी देर गुजरी थी वन फतेह का नाम न लेने की फैसले को। नाम तो कभी जहन से महवी नहीं होता था। चेता लिया, अब आप क्या करेंगी। तालिया कितनी देर स्क्रीन को देखती रही। वो अभी तक कुर्सी की पुष्ट पे हाथ रखे खड़ी थी। तीनों में से कोई नहीं बैठ सका था, लेकिन तालिया की हालत सबसे मुख्तलिफ थी। तालिया, दाता ने नरमी से पुकारा, तुम इसको छोड़ने का फैसला कर चुकी हो, तो मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती। अपोजिशन फतेह को इम्पीच करे या पुलिस से गद्दारी के इल्जाम में पकड़ ले, तुम्हारा मसला नहीं है। उन्होंने इतने बरस इस कुर्सी के लिए मेहनत की थी। वो बिना पलक झपके स्क्रीन को देखी। सारे फैसले, सारी जद्दोजहद ख्वाब के लिए थी। तालिया प्लीज। दाता इसके स्क्रीन के दरमियान आ गई। यह हमारा मलाका में आखिरी दिन है, हम सब इसके बाद अलग हो रहे हैं। मैंने दिन रात एक करके इनको चेयरमैन का इलेक्शन जितवाया था। वो उलझे हुए अंदाज में खुद से बोल रही थी। मैं इनकी कॉफी कपड़ी बारिशों में उनके साथ भागा करती थी, वो सब साया चला जा गया। तालिया, यहाँ से चलो, कहीं और बैठते हैं जहाँ सियासत का जिक्र ना हो। ताली ने चेहरा इन दोनों की तरफ मुड़ा। इसकी हैरान आंखों में पानी था। इनकी बरसों की रियासत रायगा चली जाएगी। वो एक बेवकार ना अहल वजीर आजम के तौर पर निकाल दिए जाएंगे। वो भी यकीनी से पूछी थी, आपको क्यों परवाह है। चितालिया एडम संजीदगी से बोला। ताली ने इसकी आंखों में देखा तो वहां एक चैलेंज लिखा नजर आ रहा था। दाता ने इसे टोकना चाहा, लेकिन एडम बिन मोहम्मद को सच बोलने से कौन रोक सकता था। आप तो उनको छोड़ चुकी हैं, आप तो फैसला कर चुकी हैं कि आप किसी को नहीं बचाया करेंगी, बल्कि आप खुद गर्जी की जिंदगी गुजारेंगी। क्योंकि वो इसकी आंखों में देखता 2 कदम करीब आया। क्योंकि आपका रंग सियाह है, मेरा रंग सियाह नहीं है। वो जवाब न कर रही। तालिया, सियाह नहीं हो सकती, मुझे नहीं मालूम मेरा रंग क्या है। मुझे सिर्फ एक बात मालूम है कि मैं गलत थी। मैं सारी दुनिया को नहीं बचा सकती, लेकिन मैं वन फतेह को जरूर बचाऊंगी। तालिया इनका ख्वाब इनके हाथों से छिनने नहीं देगी। इसने नोचने वाले अंदाज में अपना पास उठाया, दरवाजे की तरफ बढ़ी। दाता ने हक्का पक्का सोच देखा। तुम कहाँ जा रही हो।
दातन इसके पीछे लगी। मेरी फ्लाइट में अभी 1 हफ्ता है, मैं इस वक्त को जाया नहीं करूंगी। मैं वान फतेह की मदद के लिए जा रही हूँ, मगर अब कुछ नहीं हो सकता है। तालिया के पास हमेशा प्लान होता है। मीशा की वो जान गए थे, उन्होंने यकीनन इसे अपने सिक्योरिटी एजेंसी के हवाले कर दिया होगा। मैं मीशा से मिलने जा रही हूँ, मुझे चाहिए मीशा की जान भी लेने पड़े, लेकिन मैं इससे ये बात साबित कर के रहूंगी कि वान फतेह इस मामले में बेकसूर थे। वो बाहर निकलते हुए तेज तेज कह रही, सारी परेशानी में तालिया मुराद ने नहीं देखा कि दातन ने बहुत महारत से इसके पर्स से वो लिफाफा निकाल लिया था। फिर खत वापस पर्स में डाल के इसने लिफाफा एहतियात से अपनी कोट की जेब में डाल लिया। तालिया इनसे ज्यादा खुद से बोलती हुई अब फुटपाथ पे आगे बढ़ रही थी। सरी प्रधाना पे शाम के नील गो साइड वाले थे। इस ऊंचे महल की सारी बत्तियां रोशन थीं। इसके सब्ज बागात में लगे लैंप पोस्ट भी जले थे। प्रधानमंत्री के ऑफिस की खिड़कियों से अलबत्ता बाहर की रोशन रात दिखाई नहीं देती थी। खिड़कियों के आगे ब्लाइंड्स बराबर थे। अपनी कुर्सी पर बैठा फाते पीठ लगाए, आस्तीने मोड़े, इत्मीनान से सामने बैठे दोनों अफराद को देख रहा था। वो दोनों उम्र रसीदा थे और रिवायती लिबास में मलबूस थे। सर टोपियों से ढके दोनों के चेहरे परेशान थे और वो एक साथ तेज से बोले जा रहे थे। आप इस क्राइसिस से कैसे निकलेंगे दातू सरी? बेफिक्र रहो, फातिह ने बरूज का केसी मुतमईन आवाज में कहा। लोगों की ईमेल हैक होती रहती हैं, कौमी सलामती खतरे में नहीं पड़ी तो मसला क्या है? वो पुरानी ईमेल थी वैसे भी। दातू सरी, लोग सवाल उठा रहे हैं कि जाने और कितनी हसास ईमेल्स आपने प्राइवेट सर्वर पे भेजी होंगी और सब आपको इल्जाम दे रहे हैं प्राइवेट सर्वर। उफ, इंसाफ ने कर आंखें माथे को छुआ। हाँ ठीक है, मैंने इस्तेमाल किया प्राइवेट सर्वर, सब करते हैं, आपसे नहीं करेंगे। सरी मामला इतना सीधा नहीं है, यहाँ कोई हैकर को इल्जाम नहीं देगा। ये लोग मीडिया ये आपके खिलाफ इतनी बड़ी मुहिम चलाएंगे कि कुछ नहीं होगा। रिलैक्स। मुझे बताओ, हमें बिल मंजूर करवाने के लिए कितने लोग चाहिए? सिर्फ 5 और। लेकिन दातू सरी, इस बिल को पसे पुश डाल दीजिए और इस मामले से निकलने की कोशिश करें। बिल को क्यों पसे पुश डाल दूं? मैं सोमवार की सुबह ये बिल कौमी असेंबली में पेश करने जा रहा हूँ। वो ने अपनी निश्चित से खड़ा और मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया। और जिससे तुम मिले से बता देना कि वान फतेह को इन ईमेल लीक से कोई फर्क नहीं पड़ता। वान फतेह इस्तीफा नहीं देगा। मजबूत लहजे में कह के इसने दोनों से हाथ मिलाया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और गहरी सांस लेकर इसे अलविदा कहा। वो बाहर निकले तो फतेह के चेहरे पे परेशानी की नमक दिखाई दी। इसने इस बोर्ड को देखा जो अभी तक ऑफिस में रखा था। वहां मुख्तलिफ रंगों के मकनातीसी गोट लगे इसे बता रहे थे कि अभी तक इसके पास बिल पास करने के लिए मतलूबा अक्सरियत नहीं है। इसने गहरी सांस ली और उनका काम उठाया। क्या जी तालिया अभी तक बैठी हैं? जी सर, वो पिछले 20 मिनट से आपका इंतजार कर रही हैं। अगली मीटिंग में कितना वक्त है? 7 मिनट। ओके, तालिया से कहो कि इसके पास 10 मिनट है। फोन रख के इसने तासरात वैसे ही बना लिए, पुरसुकून, मुतमईन और कदर सर। अगले लम्हा दरवाजा खुला और वो अंदर आई। वो दूर से उसे देख सकता था कि इसके माथे पे बलते और आंखों में गुस्सा था। आज इसने हैट नहीं पहन रखा था, बस सियाह स्कर्ट ब्लाउज पे पीला रुमाल गर्दन में बांध रखा था। मुझे अभी अभी इल्म हुआ है कि मीशा ताज को कभी गिरफ्तार ही नहीं किया गया था। इसका एक ही मतलब है कि आपने इसे जाने दिया। क्यों फाते? वो जा रहे हैं अंदाज में बोलती। इसकी मेज के सामने आ रुकी। इसका चेहरा गम और गुस्से से तिमतिमा रहा था। ये सब इसने किया है, क्या फर्क पड़ता है? ये इतना बड़ा मसला नहीं है। टेक लगा के बैठे फाते ने कंधे उचकाए। आपकी प्रीमियरशिप खतरे में है और आप कह रहे हैं कि ये बड़ा मसला नहीं है? वो ताज्जुब से बोली। और आपने मीशा को जाने क्यों दिया जबकि आप जानते थे कि वो ये करेगी? जिस वक्त मैंने इसे जाने दिया वो इससे पहले ये सब कर चुकी थी। हमें मालूम अब हुआ है, उसको रोकने से वो जो नुकसान पहुंचा चुकी थी वो रिवर्स तो नहीं हो सकता था। तालिया सीधी हुई पुतलियों से टेढ़ के उसे देखा। आपने इसे क्यों जाने दिया फाते? क्योंकि मेरे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। वो चुपचाप चली जाए ये बेहतर था इससे कि मैं कोई नया मसला खड़ा करता। जुलियाना डिस्टर्ब होती, शर्मिंदगी अलग होती। नहीं, इसने आपको ब्लैकमेल किया था, है ना? मुनफी में सर लाते हुए कह रही थी। इसके पास जो कुछ था आपके खिलाफ। ये गुफ्तगू बेमायने है। तालिया, तुम बताओ तुम क्यों आई हो? इसने धीमी आवाज में कहते हुए गढ़ी थी। क्योंकि मैं आपकी कुर्सी छीनते हुए नहीं देख सकती फातेह। आप इस मसले से नहीं छुप सकते। मुझे बताएं, मीशा के पास आपके खिलाफ क्या था ताकि मैं उसको ढूंढ सकूं और उसको वापस ला सकूं? उसको वापस लाने से क्या होगा? तालिया दोनों हथेलियां में इस पे रख के झुकी और एक एक लफ्ज पे जोर देकर बोली। उस सारी आवाम के सामने गवाही देगी कि वान फातिह ने कुछ गलत नहीं किया। मैं इससे गवाही दिलवा दूंगी। आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि इसने किस चीज से आपको ब्लैकमेल किया था? आपकी तालिया के अंदाज में झुंझलाहट थी, बेबसी थी। तालिया, फातिह ने एक फाइल करीब करते हुए नरमी से पूछा। क्या तुम मुल्क छोड़ के नहीं जा रही थी? वो आपका मसला नहीं है। इसकी रंगत गुलाबी पड़ने लगी। वो सीधी हुई। आप अपने मसले का सोचें, मैं अपने मसले खुद हल कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। थैंक्स बट नो थैंक्स। वो नरमी से कह रहा था जैसे किसी बच्ची को समझाया जाता है। लेकिन ये स्कैंडल आपकी कुर्सी ले जा सकता है फातिह। इसकी बेबसी अब परेशानी में बदलने लगी थी। मगर मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे बचाओ।
मैंने इससे बड़े मसले देखे हैं, मैं इसमें से भी खुद निकल आऊंगा। फाइल करीब करते हुए इसने ऐनक उठाई और खोली। और वो पेपर्स मैं अभी तक साइन नहीं कर सका, तुम्हारी फ्लाइट से पहले करके तुम्हें भिजवा दूंगा। ठीक तालिया। ऐनक लगाते हुए इसने फाइल खोली। ये उसको जाने का इशारा था। आपने कहा था कि कभी कभार हमें दूसरों को इजाजत देनी चाहिए कि वो हमें बचा सकें। वो दुख से इसे देख के बोली, तुम्हारे लिए कहा था। वो अब फाइल पे ऊपर से नीचे सरसरी नजर दौड़ा रहा था। इसने आपको किसकी वजह से ब्लैकमेल किया? फतेह का सफा पलटता हाथ रुका। किसी बहुत कीमती शख्स की वजह से। एक गहरी खामोशी ने उनको अपनी लपेट में ले लिया। हमेशा की धमकी खाली भी हो सकती थी, हो सकता है उसे डरा रही हो सकता है, लेकिन मेरे पास खतरा मोल लेने की गुंजाइश तक न थी। वो फाइल की तरफ मुतवज्जा हो चुका था। तालिया ने धीरे से नफी में सिर हिलाया। ये तय था कि वॉन फतेह उसको अपनी मदद करने की इजाजत नहीं देगा, और जो इजाजत ना दे इसकी मदद कौन कर सकता है भला। वो बाहर निकलने लगी तो इसी वक्त एक ढीले सूट में मलबूस नौजवान अंदर दाखिल हुआ। इसे देख के रुका और रास्ता दिया। तालिया बाहर आई, लेकिन इसने गर्दन मोड़ के देखा। वो एक सियाह कवर वाली फाइल लेने अंदर जा रहा था। दरवाजा बंद हो गया तो अंदर का मंजर छुप गया। वो चंदना भी वहीं खड़ी रही, बाहर मेज पे बैठा स्टाफर। इसको यूं खड़ा होने पे अब हमें पीछे घूमने लगा, मगर वो ढीठ बनी खड़ी रही। वो नौजवान बाहर आया और दरवाजा बंद किया तो वो पूछे बिना न रह सकी, मैं देख रही थी कि आप हर दफा इनसे फाइल्स का ढेर लगाते जाते हैं, लेकिन पीएम साहब इनको नहीं देखते, इनमें ऐसा क्या है? शाहिदान नामी वो स्टाफर हिचकिचाया। ताली ने सर झटका। खैर कोई कॉन्फिडेंशियल मामला है तो मैं नहीं पूछती, और आगे बढ़ने लगी। लेकिन वो फौरन बोला, नहीं, खुफिया मामला नहीं, बल्कि जरूरी मामला भी नहीं है। काश होता तो वो इसे ज्यादा जल्दी देख पाते। वो रंजीदगी से बोला। ताली रुक के उसे दिखने लगी। दरअसल दातूसरी ने कुछ अर्से पहले कहा था कि वो एक प्रोजेक्ट जस्टिस शुरू करेंगे, जिनमें इन लोगों के केसेस सुने जाएंगे जो अरसे से जेलों में मुक़ीद हैं और उनके पास अच्छा वकील करने को रकम नहीं है, और सरकारी वकला इनके केसेस लापरवाही से देखते हैं, बिलखुसूस वो लोग जो ये दावा करते हैं कि वो बेगुनाह हैं, कैदी, गुलाम। वो उदासी से मुस्कुराई। वो गरीब कैदियों को रिहाई दिलवाना चाहते हैं। मैं समझ सकती हूँ, और सिर्फ वही समझ सकती थी। जी हाँ, जब से हमने इस प्रोजेक्ट का ऐलान किया है, मुल्क भर से सैकड़ों कैदियों और उनके घर वालों ने दरखास्तें भेजी हैं। मैं हर हफ्ते वो दरखास्तें इकट्ठी करके इनको फाइल में लगा के दातूसरी के पास ले जाकर रखता हूँ, लेकिन इनके पास ज्यादा अहम काम है। न जाने कब वो इन दरखास्तों को देख पाएंगे। जब वो इन जमा हुई दरखास्तों को नहीं देख पाते तो अब हर हफ्ते इनमें इजाफा क्यों करते जाते हैं? दरखास्तें देखना इनकी जॉब है, फाइल इनके पास पहुंचाना मेरी जॉब है। क्या वॉन फातेह ने हमें ये नहीं सिखाया कि अगर कोई दूसरा अपनी जॉब ना कर रहा हो तो हमें भी अपनी जॉब करनी चाहिए? वो मुस्कुरा के बोला। वो मुस्कुरा भी ना सकी। फातेह खुद को बचाए या ना बचाए, क्या तालिया को अपनी जॉब नहीं करनी चाहिए थी? हालिम का अपार्टमेंट इस रात हमेशा की तरह खामोश पड़ा था। खामोश मगर रोशन। आज लाउंज में रखे कॉर्नर लैंप्स रोशन थे। टीवी स्क्रीन म्यूट पे थी, मगर इस पे चलती खबरें खामोशी के बावजूद समझ में आती थी। वो न्यूज एंकर और तज्जिया निगारों की फातेह के खिलाफ जहर उगलती जबानें सुन सुन के तक गई थी, इसलिए इन्हें गूंगा कर दिया था। लेकिन वो न्यूज बंद भी नहीं कर पा रही थी। शायद कहीं से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल जाए। हालात हर गुजरते पल के साथ बदतर होते जा रहे थे और वो कुछ नहीं कर सकती थी। दिल चाह रहा था वो फातेह के खिलाफ बोल के रिपोर्ट रेटिंग और पैसे कमा रहा था। किसी एक की बदनामी के गंगा से सबका हाथ धोना जरूरी था। मीशा का पेपर वर्क इतना अच्छा था कि दाता ने से ढूंढ थक गई थी और उसका कोई नामो निशान तक न था। वो कहाँ से आई, कहाँ चली गई, कुछ मालूम था। ऐसे जैसे हवा में तहलील हो गई हो। दाता ने फोन करके बताया था कि वो मजीद कोशिश करेगी, लेकिन वो बहुत पुरुम्मीद नहीं थी। तालिया की उम्मीद भी दम तोड़ी थी। कभी इम्कान था कि मीशा ताज अब तक मुल्क से फरार हो चुकी होगी और किसी दूसरे मुल्क में एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी होगी। मीशा ताज ने अपने पीछे एक ब्रेड क्रम भी नहीं छोड़ा था। कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता था? किसी मुस्तकिल चल रहा था और वो सामने सोफे पे बैठी थी, बाल पोंदी में बंधे, आलती पालती किए। वो गोद में रखी टोकरी से चंद खुतूत निकाल के दिख रही थी। फातेह के 5 खुतूत थे जिन्हें वो अपने साथ रखती थी। ये तालिया मुराद की कुल मता थे। वो उदास मुस्कुराहट के साथ उनको पढ़ रही थी। डियर तालिया, मैं इस उम्मीद के साथ वापस आया था कि तुम यहाँ मिलोगी, लेकिन तुम अभी तक नहीं हो। तुम्हारे पीछे मलेशिया में बहुत कुछ तब्दील हो गया है। खुद वॉन फातेह तब्दील। डोरबेल बजी, बात अधूरी रह गई। वो चौंकी। इस वक्त कौन आ गया? शायद दातन, लेकिन दातन घंटी करने का तकल्लुफ कम ही किया करती थी। इसने टोकरी मेज पे रखी जहाँ इसका पासपोर्ट, टिकट का प्रिंट आउट और दूसरे सफरी डॉक्यूमेंट्स पड़े थे। इस वक्त वो अपने कागजात को अरेंज करने बैठी थी। जब वो खुतूत मिले, इस घंटी ने सारे काम में खलल डाल दिया था। इसने दरवाजे के सुराख से देखा तो पल भर के लिए मुतअज्जिब रह गई, फिर पट खुला। सिकंदर,
इसने अचंभे से सामने खड़े नौजवान को देखा। इसके पीछे 2 सूट में मलबूस गार्ड बुत बने खड़े थे। मुझे आपसे बात करनी थी मिस तालिया, वो तलखी से बोला। तुमने मेरा घर कैसे लूटा? मैं प्रधानमंत्री का बेटा हूँ, मेरे लिए मुश्किल नहीं है। इसकी आवाज में तरस था। तालिया के माथे पे शिकंदर आई। ओके, तुम मुझे ये बताने आए हो कि तुम मुझसे कितनी नफरत करते हो? वो भी इसी के अंदाज में बोली। मैं ये बताने आया हूँ कि मीशा को डैड ने मेरे सामने निकाला था और मैंने डैड से कहा कि औरत आपको नुकसान पहुंचाएगी तो जानती है। तुमने आगे से क्या कहा? यही कहा होगा कि तुम्हारे ख्याल में मैं ये बात नहीं जानता। तालिया गहरी सांस लेकर बोली तो सिकंदर जो कुछ कहने जा रहा था रुक के उसे देखने लगा। इसके माथे की एक शिकन कम हुई। आपको कैसे पता? क्योंकि मैं इनको जानती हूँ। सिकंदर ने बेवाएं इकट्ठी करके उसे देखा। मगर क्या आप ये जानती हैं कि मीशा ने डैड को किस बात पे ब्लैकमेल किया था? हाँ सिकंदर, मैं जानती हूँ। उसने यही कहा कि वो किसी तरह मुझे नुकसान पहुंचाएगी, शायद मेरे माजी के जराइम दुनिया के सामने लाकर, है ना? सिकंदर के तासुरात देख के तालिया ने संजीदगी से सर झटका। मुझे अंदाजा था। सिकंदर ने बोलने के लिए होंठ खोले फिर बंद किए। समझ नहीं आया क्या कहे? तालिया सामने से हटके और उसे अंदर आने का इशारा किया। वो अंदर दाखिल हुआ। एक तारा ने निगाह इतराफ में डाली। तारे ने दरवाजा बंद किया और सामने रखे सोफे की तरफ इशारा किया। वो अपनी जगह से नहीं हिला, माथे पे शिकने लिए वहीं खड़ा रहा। मेरी माँ के छोड़े नवारा दराज से खरीदा होगा आपने ये घर। तालिया ने अफसोस से उसे देखा। सिकंदर, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो। ऑफ कोर्स मैं आपसे नफरत करता हूँ और मैं आपको यही बताने आया हूँ कि आपकी वजह से मेरे डैड मुश्किल में हैं। आप जब भी हमारी जिंदगी में आती हैं मुश्किलें हिलाती हैं। आप नहीं थी तो आप सुकून में थे, आप आई तो सब खराब होने लगा। उधर में लाउंज के बस में आमने सामने खड़े थे। इनके सरों पे छत से झूलता फानूस अपनी सारी रोशनियां अपने अंदर दफन किए खामोशी से उनको देख रहा था। तुम्हें खुश हो जाना चाहिए कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। मेरे डैड को मुसीबत में फंसा के आप जा रही हैं। वेरी गुड। मैंने इनकी मदद की कोशिश की लेकिन वो नहीं चाहते कि इनके लिए कुछ करूं। मैं क्या कर सकती हूँ? और वैसे भी मेरे होने से तुम सबकी जिंदगी मुश्किल में पड़ जाती है। तुम्हारी माँ का कत्ल भी मैंने किया था और ये ईमेल्स भी मैंने लीक की थी। फाइन, क्या तुम्हें कुछ और कहना है या मैं अपने काम करूं? वो तके तके अंदाज में बोली। सिकंदर ने सर झटका और आगे चला आया। फिर वो खुद ही सोफे बैठा और हाथ बाहम बसाए सामने दीवार गिर खिड़की को देखने लगा। वहां से दूर दूर तक बुलंद इमारतें दिखाई दे रही थी। नीचे सड़क पे रवा दवा ट्रैफिक। आप उनको इल्जाम देती थी कि वो आपके लिए कुछ नहीं करते। वो आपको बुरा तो इसके वास्ते की थी। आपके लिए उन्होंने अपना ऑफिस दांव पे लगा दिया। आपकी वो से इनका करियर तबाह हो रहा है आपकी वजह से। तालिया सीने पे बाजू लपेटे खड़ी नापसंदीदगी से उसे दिख रही थी और वक्त इल्जाम बर्दाश्त कर करके तंग आ चुकी थी। लेकिन वो फतेह का बेटा था, इसकी बात इसे बर्दाश्त करनी थी। कुछ रिश्तों का अदब इनके खत्म होने या ना होने से बलतर होता है। मैं इसीलिए इन्हें छोड़ रही हूँ सिकंदर। मेरी वजह से इनकी जिंदगी पेचीदा हो जाती है। मैं और क्या करूँ? आप कुछ भी ना करें। आप बस ये याद रखें कि इनका करियर आपने खराब किया है। मिसेस मीशा आपके बारे में ठीक कहती थी। आप ना अच्छी कौन वुमेन बन सकी ना अच्छे फैसले कर सकी। वो आपसे बेहतर ही थी। ताली ने बेयकीनी से उठाए, दोनों बाजू पहलू में गिरा दिए। एक मिनट, ये कब कहा उसने? वो तेजी से उसके सामने वाले सोफे आके बैठी। वो तेज तेज बोले जा रहा था। रुक के कौफ से बोला, जब वो आपको ढाल बना के हमारे घर से गई। इसने क्या कहा? मुझे इसके अल्फाज बताओ। वो आगे को हुए बैठी सांस रोके उससे पूछी थी। सिकंदर को लगा जैसे वो पलक झपकना भूल गया। वो ठह गया। जब डैड ने उसे घर से निकाला तो उसने जाते वक्त मुझे और जूली को कहा था कि वो अटक टक याद करने लगा कि तालिया से कहना मीशा इससे बेहतर कौन वुमन है, बल्कि बेहतरीन, क्योंकि मीशा को अपनी सियाही पे फख्र है जबकि तालिया मुराद अपने पेशे से नफरत करती है। तालिया मुराद मैदान छोड़ के भागने वालों में से है। ऐसा ही कुछ कहा था। क्या इसने वाकई ये कहा? वो मुताज्जिब से उसे देख रही थी। सिकंदर ने नागावारी से उसे देखा। मैं आपको यहाँ हमेशा ताज के पैगाम देने नहीं आया, बल्कि ये एहसास दिलाने आया हूँ कि आपकी वजह से, मेरी वजह से सारे मसले हो रहे हैं वगैरह वगैरह। मुझे पता है। वो तेजी बोली। इसकी आंखें चमकने लगी थी। लेकिन क्या इसने वाकई ये कहा? वो हैरान से अंदाज में मुस्कुराने लगी थी। इससे क्या फर्क पड़ता है कि इसने क्या कहा? पड़ता है ना। अब मुझे मालूम हो गया कि हमने मीशा को कैसे पकड़ना है। सिकंदर ने बेयकीनी से उसको देखा। क्या मतलब? चंद लम्हे के लिए वो बिल्कुल गंग हो गया। इसको पकड़ के क्या ये बात साबित की जा सकती है कि ईमेल्स लीक होने में डैड का कसूर नहीं था? एक दफा हम इसको पकड़ ले तो हम इससे कुछ भी कहलवा सकते हैं, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। सिकंदर के माथे पे शिकनी उभरी। मैं आपकी मदद क्यों करूंगा? देखो सिकंदर, तुम मेरे पास सिर्फ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें मालूम है कि अगर तुम्हारे डैड को इस क्राइसिस से कोई निकाल सकता है तो वो मैं हूं। इसलिए मुझसे जितना खफा होना था वो अब तुम बाद में हो लेना। तालिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल मेरी मदद करो। हमने मीशा की प्रोफाइल तैयार करनी है। हाँ, मैं और मेरी दोस्त लिया रहा। तालिया मोबाइल पे नंबर मिलाते हुए उठ खड़ी हुई। वो भी आपकी तरह लोगों के घर में चोरियां करती हैं? तालिया ने फोन कान से लगाते हुए उसे देखा। नहीं, वो बिना तकलीफ दिए कत्ल करने में भी माहिर है। सिकंदर सर झटक के मुंह में कुछ बड़बड़ाया।
तालिया फोन कान से लगाए उठ गई। सिलसिला मिल गया। अब वो किचन के सामने चक्कर काटते हुए दातन से बात कर रही थी। वो वापस आई तो सिकंदर टोकरी में रखे कागजात देख रहा था। आप वाकई अगले हफ्ते जा रही हैं? इसने प्रिंट शुदा टिकट को वापस रखते हुए सरता अंदाज में पूछा। नहीं, ये जाली कागजात हैं जो मैंने तुम्हें धोखा देने के लिए मेज पर सजाए हैं। वो इसी के तंजी अंदाज में बोलते हुए साथ बैठी। सिकंदर खामोश हो गया। वो फोन पे कुछ देख रही थी। आप मीशा को कैसे पकड़ेंगी? कुछ देर बाद वो खंखरा। ताली ने जवाब नहीं दिया। फोन देखती रही। इसने बेचैनी से पहले बोला, मीशा की बातों में इतना खास क्या था? इसने फिर पूछा। मीशा को हम इसलिए नहीं ढूंढ पा रहे थे क्योंकि इसकी हर बात इसके रोल का हिस्सा थी। मेरी हिमायत करना या मुझे अच्छी नसीहत करना सब धोखा था। लेकिन वो मुस्कुराते हुए फोन स्क्रीन पे बटन दबा रही थी। इसने अपने राज खुलने के बाद जो भी कहा वो इसका सच था। इसने कहा कि वो आपसे बेहतर है। नहीं, इसने कहा कि वो बेहतरीन है। तुम्हें मालूम है आज तक तालिया इमरात किसी कौन गेम के दौरान क्यों नहीं पकड़ी गई? क्योंकि तालिया का मानना था कि बेहतरीन कौन गेम वो होता है जिसमें खुद टारगेट को भी अपने लूटे जाने का इल्म न हो सके। मैं जब कौन गेम्स खेलती थी तो लोग मुझे हालिम यानी इन्वेस्टिगेटर के तौर पे हायर करते थे। मैं कभी विलन बन के नहीं भागती थी जैसे मीशा भागी। लोग मुझे खुद पैसे देते थे और बरसों मेरे मशगूल रहते थे। तालिया आज तक इसलिए नहीं पकड़ी गई क्योंकि वो लोगों को जताती नहीं थी कि वो बेहतरीन है। इसे मालूम था कि वो बेहतरीन है और इसे अपनी इस बात पे फख्र न था। जानते हो तालिया कैसे पकड़ी गई? कैसे? वो गौर से उसे देख रहा था। अपने वीक लिंक से। हर जंजीर में एक कमजोर कड़ी होती है। मेरी कमजोर कड़ी थी इज्जत हासिल करने की ख्वाहिश, और इस ख्वाहिश के पीछे मैंने अपने स्याही को खुद से अलग किया और एक साफ सुथरी जिंदगी को चुना। वही जिंदगी मुझे लाइमलाइट में ले आई और एक दिन प्रोसिक्यूटर अहमद निजाम ने मुझे घेर लिया। अगर मैं अपनी ख्वाहिश के पीछे न भागती तो मैं कभी पकड़ी न जाती। और मीशा, वो अब ध्यान से उसे सुन रहा था। लाउंज के कॉर्नर लैंप्स की जर्द रोशनी में वो इस तेज तेज बोलती लड़की को सांस रोके सुन रहा था। मीशा के ख्याल में वो ताले की तरह मैदान छोड़ के भागने वालों में से नहीं है और तुम्हारे घर से भी फरार हो सकती थी, लेकिन वो इस वक्त तक नहीं गई जब तक फातिह ने इसे पकड़ ना लिया। मीशा खुद पकड़े जाना चाहती थी, इसलिए इसने उनको ब्लैकमेल करने का प्लान भी बना रखा था। वो क्यों पकड़े जाना चाहती थी? क्योंकि मीशा ने 2 साल तक एक कौन गेम खेला था। 2 साल सिकंदर। इसे इस अदाकारी के लिए तारीफ चाहिए थी। वो फातिह को इनके मुंह पे बताना चाहती थी कि इसने उनको धोखा दिया। मीशा को कौन गेम का पहला उसूल याद नहीं रहा जिसमें सिखाया जाता है कि बेहतरीन धोखा वो होता है जो कभी ना खुले। बल्कि बरसों बाद भी टारगेट इस सबको याद करे तो इसे लगे ये इसका अपना ही आइडिया था। मीशा चाहती है कि किसी फिल्म की तरह आखिर में वो अपने टारगेट के सामने इंकशाफ करे और उसके चेहरे की तासुरात देखे। जानते हो कौन लोग ऐसा करना चाहते हैं? एक्टर्स और जादूगर। वो स्टेज पे परफॉर्मेंस देकर तालियों के मुंतजिर होते हैं। मीशा को भी तालियां चाहिए हैं और इसे पकड़ने के लिए हम इसे वही देंगे जो इसे चाहिए। मगर आप एक कौन वुमेन को कैसे कौन करेंगी? इसे एक ख्वाब दिखा के। ख्वाबों का फरेब जानलेवा होता है। एक जमाने में तालिया इस शहर की बेहतरीन कौन आर्टिस्ट थी। मीशा वही बनना चाहती है। इसने इतना बड़ा काम किया है। इसने प्रधानमंत्री को कौन किया है। वो ये मुल्क नहीं छोड़ेगी। वो मुस्कुराते हुए नफी में सर हिलाते हुए कह रही थी इसका रेट बढ़ जाएगा, लोग इसे हायर करेंगे। मीशा की कमजोरी कड़ी इसकी अना है। इसे अपनी दुनिया में नाम कमाना है, मगर लोग इसे कैसे हायर करेंगे उसको तो तलाश करना नामुमकिन है क्योंकि हम इसका असली नाम नहीं जानते। लेकिन चूंकि वो तालीम से बेहतर बनना चाह रही है इसलिए इसके पास अपने क्लाइंट से रब्ता करने का कोई तरीका जरूर होगा। जैसे तालिया के पास था डार्क वेब पे वो मैदान है जिसे ताली ने छोड़ दिया था। हम इसे डार्क वेब पे ढूंढेंगे जहाँ हैकर से लेकर किराए के कातलों तक अपने अपने पेज बना कर रखते हैं। थोड़ी देर बाद लाउंज की रोशनियां तेज हो गई और खिड़की के आगे पर्दे डाल दिए गए। अब सामने वाले सोफे पे दातन बैठी थी और लैपटॉप की कीबोर्ड पे उंगलियां चला रही थी। गाहे बगाहे एक चिड़ी निगाह इस लड़के पे भी डालती थी जो इसके मुकाबिल बैठा था डार्क वेब पे। किसी कॉन्ट्रैक्ट क्रिमिनल की लोकेशन तलाश करना नामुमकिन है, लेकिन मुख्तलिफ फॉरम्स पे लोगों ने मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स को रिव्यूज दे रखे थे। दातन स्क्रीन पे उंगली फेरते हुए बता रही थी मीशा नहीं है करे कातिल, वो गिरफ्तार है। इन फर्म से मैंने केएल में काम करने वाले 25 गिरफ्तार्स की प्रोफाइल तलाश की है। इनमें से औरतें कितनी? सिकंदर तेजी से बोला। तालिया इस वक्त कुछ ना सुन रही थी। हाथ में टेक अवे के डब्बे थे। इसने उनको मेज पे रखा और चॉपस्टिक्स निकाल के सबके आगे रखने लगी। यहाँ मर्द और औरत को तफरीक करना नामुमकिन है। सब खुद को मर्द ही जाहिर करते हैं। दाता ने लैपटॉप स्क्रीन इसके सामने कि वो सोफे पे बैठी और गौर से नामों को पढ़ने लगी। आप सिर्फ इसके नाम से इसे कैसे ढूंढेंगी? ये तो कोई भी नकली नाम हो सकता है, सिकंदर ने चॉपस्टिक्स उठाते हुए कहा। वो अब वहां कदर आरामदेह अंदाज में बैठा था। ताली ने स्क्रीन पे एक जगह उंगली रखी। ये मीशा है। कसातरिया हताम। दाता ने ताज्जुब से इस नाम को पढ़ा। ब्लैक नाइट। मगर ये तो कोई रूसी कॉन्ट्रैक्टर है और इसके बारे में कहते हैं कि
ये मीशा है, वो पूरे यकीन से बोली। वो सियाह घोड़ों की तस्वीरें खींचती थी और फतेह का सियाह घोड़ा नहीं था। मीशा खुद को ब्लैक नाइट समझती है। वो शतरंज का सियाह घोड़ा है जिसे अपनी स्याही पर फख्र है। इसने उंगली से स्क्रीन पे दस्तक दी। ये मीशा ही है, क्या इसकी लोकेशन मालूम हो सकती है? सिकंदर तेजी से बोला, नहीं, वो खुद हमारे पास आएगी। हम इसके साथ एक कौन खेलने जा रहे हैं, मेरी जिंदगी का आखिरी कौन गेम, और मुझे यकीन है वो इस फंदे से नहीं निकल सकेगी। ताली ने पीछे को टेक लगाई और चॉपस्टिक्स के डब्बे अंदर डाले। और तुम मुझे मीशा के बारे में हर वो बात बताओ जो इन 2 सालों में तुमने देखी हो, हर बात। सिकंदर ने गर्दन हिला दी। इसके किसी किसी अंदाज में अलबत्ता कमी नहीं आई थी। वो भी तालिया को मशकूक नजरों से देखता था, मगर वहां पर वाकई सी थी। वो चॉपस्टिक से चाउमीन खाते हुए सिकंदर की बात गौर से सुन रही थी।